All right, then. That was amazing, isn't it? So, if, like I said, if you haven't checked out Bharat Gyan, please do. You'll be blown away by a lot of that information that has been put up over so many years on their website and YouTube channel. And now, today, I want, Omiji has been a host for us and, helping us throughout this whole VSI project. It is his baby. But, today I want to invite him to present his Nimitekam project, which is actually Nimitekam is an organization that works on the ground in Rajasthan, rehabilitating some of the refugees that flee persecution in Pakistan. And a lot of these Hindus and Sikhs who come, because leaving their own homes and fleeing persecution in Pakistan, they come to Rajasthan, at the border, and that is where Nimitekam steps in, helps them to rehabilitate, get the paperwork and all of that important thing that is important for the refugees to get a decent life in a new country. So I want to welcome Omiji, Dr. Omendra Ratnu, to present his project. And also, I think he has a couple of other guests who work with him on the side on the Dalit project. And also, I think Rajesh Chamaria, who has recently got his citizenship. So congratulations to him. And also, he's going to talk about his work with Nimitekam. So welcome, Omiji. Are you there? Yep. There you are. I was worried. You were worried? Your technical glitch? Where did you go? You were worried of a technical glitch, or you thought I lost interest? Well, I know you don't lose interest in Nimitekam. That's your baby. Yeah. Nimitekam is. So I don't lose. I keep thinking of these small girls. Yes. That are being devoured by these mafia. That's my singular reason to be here. Yeah. Otherwise, I'm a loner. I would rather be sitting on the banks of Ganga in the Rishikesh and doing my stuff. But these girls, I'm writing poems or singing. Whatever. That but these children, these girls. Yes. 3 girls every day. We can't leave them. We can't leave them. We can forsake them. Yes. So here we are. So my talk today is going to be a little longish, which I don't like, but so be it. We'll have Neeraj Attri joining us in about 15 minutes. He is there with us in the back room, but I'll be doing a short presentation on the Pakistani Hindu issue. I have been talking about Pakistani Hindus for the past 6-7 years. I've been going to the United States every year, different cities: Chicago, New Jersey, Dallas, Houston, San Diego. So what we are doing today is to document this and put on the YouTube so that anybody and everybody can refer to this data and this thing of what Nimitekam is doing for Pakistani Hindus. The second part of our presentation is going to be about Dalit integration into the main Hindu society, in the mainstream Hindu society of today, which is another challenge which Hindu society faces. And to give it a different flavor, what I will not be doing the dry talking. I'll bring Gordhan Meghwal, who has day before yesterday been granted citizenship by the Indian government. He has been the coordinator for Nimitekam in the citizenship project for the past 5 years. Gordhanji is the backbone of Nimitekam Jaipur office. He's a scheduled caste. He's a Meghwal, and he's like a brother to me. And the other guy is Rajesh Chamaria. We'll be dealing with. Me and Neeraj both will try to bring out some conflicts and challenges these people face as a society in Hindu Samaj. So before I begin, a lot of you know about what my work with Pakistani Hindus, but to give a brief recap in the next 7-8 minutes, let's start with a small video. These are the kind of videos we are getting every day for the past 1.5 years, since we have not been able to take out Hindus out of Pakistan because of the COVID crisis and the hostilities between the two nations. So I would request my team to play this video first. Have a look at the agony of this father. Understand the pain that every Hindu goes through in this hellhole of a nation, and
then I'll do my presentation. So this father, the lady sleeping on the cot beside him is his daughter, and she has been raped by the entire village, literally by entire village. And he's saying in Sindhi that why were we born as Hindus in Pakistan? We should have died, or now we should commit suicide. We cannot continue living this kind of life. These are the kind of videos we get every day. Over to my presentation to give you a broad overview of things, how Modi ji has changed the life of these Hindus, or at least tried to. What is CAA done to these Hindus, and what is Nimitekam doing on ground? Over to Tej for my presentation. So we have been trying to help Hindus and Sardars mainly. Till now, we have not saved any Christian family, but our doors are open for every minority of Pakistan who wants to come to Bharat. Next slide, please. We at Nimitekam have 5 dedicated offices. What was the genesis of this issue? How did this happen that an entire nation goes after its minorities? But specifically Hindus and Sardars, it starts with Muhammad bin Qasim attacking Raja Dahir of Sindh in the 7th century. So this has been an incessant attack, 1400 years of attack. We are the only civilization on this globe who have resisted this Islamic imperialism. Iran perished, Mesopotamia turned into Iraq, Egyptian civilization vanished, they conquered northern Africa, they took away Afghanistan from us. But Hindus, even today, are fighting a very pitched battle, a very violent battle, and a very intellectual battle with this onslaught. The genesis actually of Pakistani Hindu refugees begins in 1947. The actual physical genesis, it was a botched up partition, and to which we can only curse Nehru and Gandhi, because we were partitioned on the basis of religion. It was a surgery for a cancer which was incomplete, so we were amputated, but the cancer remained. As a result, Hindus in Pakistan, Hindus and Sardars in Pakistan, and Muslims in India both are unhappy. Only if we had listened to Baba Sahib Ambedkar, we should have taken the total exchange of population. And the Congress leadership silenced B.R. Ambedkar. So the consequences are for us to see. This is what happened. Next slide. That's the only simile I can think of, that the percentage of Hindus came down from 15% to 2% in Pakistan. In Bangladesh, it came down from 35 to 8%. This is a figure which is oft quoted. Yet, we have 1 crore Hindus and Sardars living in Pakistan. Even today, they are living a life of extreme suffering, extreme poverty, extreme onslaught of the jihadi forces. And Sardars, Christians, there are hardly any Jains left, a handful of Parsis. They're all persecuted for being non-Muslims in that country. Next slide. So the demographic inversion that we talk about, and a lot of Hindus worry about the demographic inversion in Bharat itself. And my suggestion to them is that instead of asking Hindus to produce more children, which is an idiotic advice, an idiotic asking actually, close to 2 crore Hindus in Bangladesh and close to 1 crore Hindus in Pakistan are ready-made Hindus. You don't need to produce them, just import them. This is something that the great Hindu leadership of our time understood, and that is why CAA was brought. This is the scale of genocide. I hope every Hindu pitches this into his mind, that the kind of genocide that is happening.
This is the European Union Parliament report of 2019 May. 3 underage minority girls, mainly Hindus and Sardars, are picked every single day while we indulge in Bollywood, cricket, and theme parties. There's a constant threat of conversion. Very sadly, I report that more than 2,000 Hindu families have converted to Islam in Pakistan in the past 1 year alone, especially during the COVID crisis, because of extreme hunger. No father can see his daughter, his children, his wife die of hunger, so they have converted. Regularly, minority leaders, Sardars, and Hindus are murdered. Till 2016, there was no social status of Hindu marriage. It's a part of school curriculum that Hindu gande hote hain, Hindu पर भरोसा नहीं किया जा सकता. Sometimes they abuse the Hindu baniya, sometimes they abuse the Hindu Brahmin, and sometimes they abuse our caste system without understanding an iota. And that's how this hatred is ingrained into every Pakistani child that is being educated in the schools. And the rich Hindus also don't escape this destiny. They have to pay for their safety and their survival. Next slide, please. So, what is the need for Hindus in India to save Pakistani Hindus? I sometimes get this question from Hindus in Bharat. So my first answer is, you are fighting demographic inversions. You have 3 crore Hindus in Bangladesh and Pakistan. Import them. And fortunately, they are such well-breeding Hindus. Most of them have children more than 5, but a lot of them have children, 8 to 10 children. So this is the reason we need to save them. It's also a test case for the Hindu and Christian leadership around the globe that in 21st century, in the year of 24/7 television, this is happening right under our noses. This is happening right in front of us with impunity, with shamelessness. So we need to evoke a community response to this. Then in Bharat, you want to expose the meme Bhim Ekta, which Mr. Owaisi has been pimping around. 90% of these Hindus in Pakistan are our Dalit Sahodaras, Bhils, Balais, Kolis, Meghwals. They are the biggest sufferers of jihad, and we need to tell the whole world, especially the Hindu community, that our scheduled caste and scheduled tribe brothers are facing the brunt of Islamic jihad. This is something we need to tell them in Bharat, so that at least here they stop this unholy nexus of meme Bhim Ekta. Expose the Khalistani narrative. The daughter of the chief main Granthi of Nankana Sahib is picked up, converted, and that video is still on the YouTube. That child, Jagjit Kaur, becoming Aisha and reading the Kalma is on the YouTube. So this is it. And one of the reasons economically Pakistan is a very fumbling state. So these 2% Hindus, which we talked about, close to 1 crore, and Sardars, pay more than 10% of the taxes of Pakistani state. You take them out, you give a death blow to the Pakistani economy. So this is the reason, and on an abstract scale, the free world has to reach out to these persecuted Hindus and Sardars and Christians of Pakistan who are facing annihilation, genocide for no fault of theirs except being born into a particular religion. Next slide, please. So what are the reasons for the blind spot to jihad? This is a very critical acronym that I've picked up from very intelligent people. There is a full 2-hour program on random, unceasing, low-level, scattered violence roles by Shri Sanjay Dikshit ji on Jaipur Dialogues. I recommend every Hindu on this globe should watch that to understand this is a violence of a very different kind, which is going on right now as we talk. It's a low-level violence. इतनी हिंसा करते रहो कि काफिर कभी चैन से न बैठे, मगर इतनी हिंसा भी मत करो कि काफिर इकट्ठा होकर जवाब देने पर आ जाए. Can you imagine the level of wickedness this whole violence is based upon?
How on earth is a civilized society respond to this kind of violence? I expect every Hindu to pay deep attention to this acronym and apply his intelligence and his chetana to understand that this violence is going on globally right now. It's random, it has no pattern, it is unceasing, it has been going on for 1400 years. The so-called civilized global leadership is confused, so we have to extricate them. And the confusion is whether we need to take them out or we coexist with them. We let them be, or we let them take them out. It is our concerted opinion for the past 10 years of working with Pakistani Hindus that they have to be taken out, or we stand to lose 1 crore Hindus forever, who in turn become enemies of Sanatan Dharma. The good news is the BJP started by putting it in the manifesto in 2014. That's how Nimit Ekam was born. There are a lot of notifications for minority refugees from Pakistan, the single most important being the central government giving the authority to district collectors of Jaisalmer, Jaipur and Jodhpur to grant citizenships if the papers are complete. We have been able to achieve more than 10,000 citizenships. This is besides the CAA. Even before the CAA came in, 10,000 citizenships were awarded between 2014 and 2020. CAA is a game changer. We need to have a separate session on that. It's a very long topic, but it is with my deepest heart, deepest sense of gratitude, I'm thankful to Narendra Modi ji, Rajnath Singh ji, Amit Shah for bringing CAA and standing by it. It helps us mainstream the issue. People didn't even know that Hindus exist in Pakistan. And it also helped the media to cover it because CAA became such a controversial issue. At least those who want to know and understand the global jihad and the implications of that jihad in Pakistan know it. They cannot feign ignorance now. If people choose not to do anything about it, that's their independence. Next slide, please. The good news is good news only as long as we start acting on it. So Nimit Ekam is our NGO. We registered it in 2016. Till now, we have been able to take out 10,000 Hindus out of Pakistan. We have offices in Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Karnavati, which most of us know as Ahmedabad, and Delhi. We got 2,000 citizenships in Rajasthan alone by the previous Indian Citizenship Act. This has nothing to do with CAA because CAA is not yet activated. One major breakthrough for us, people who understand refugee status and citizenship, is to grant a refugee status to pilgrims. A lot of Hindus coming to Bharat do not get the visit visa. They come here on pilgrim visa to immerse their ashes in the Ganga, their ancestors' ashes in the Ganga. People have kept their ashes for 4 or 5 generations and waited to the day they would get a visa and go to Ganga and immerse their ashes, and then they stay back. So very fortunately, this government has been very considerate. We have arranged a refugee status even on a pilgrim visa, which was a technical difficulty. Nimit Ekam has been giving medical help to every Pakistani Hindu and Sardar who comes in contact with us, because we are a team of oncologists, cardiologists, ophthalmologists. I am myself an ENT surgeon, gynecologist. Free education through RTE and seminars and workshops to raise awareness. Next slide, please. Do I need to read this, or this is a message loud and clear to be read and to be understood, to be absorbed by every Hindu? Jihadis are at our doors. They are picking up our daughters. They are killing our people. The random, unceasing, low-level, scattered violence is on right now as we talk. Neutrality is not an option. Either you're with us or you're against us. Thank you so much. Now I invite my dear friend Neeraj to join us. Neeraj, I would expect him to introduce himself, because I know Neeraj for quite some time now through the net. You know, that's the beauty and the burden of modern day communication. I haven't personally met Neeraj, but नीरज जी से बातचीत होती रहती है. पिछले साल भर से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ. And Neeraj, please tell us something about your work. What are you doing? How did you come to this? थोड़ा हमें बताएं अपने बारे में. उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है. I used to be a physics teacher, or my passion was physics only. Okay. So
जस्ट एक्सीडेंटली स्टूडेंट्स के साथ बातें होती थी, तो आई फेल्ट कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिस्ट्री में शायद गलत पढ़ाई गई हैं, इसलिए बच्चों के जो बेसिक प्रिजम्पशंस हैं या जिन पे वो सारी चीज़ें प्रेडिकेट कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ गलती है। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द एनसीईआरटी बुक्स जो हिस्ट्री पढ़ाती हैं, और तब मुझे लगा कि वो आरटीआई एप्लीकेशन लगाए मैंने जानने के लिए कि ये किस आधार पे डाल रहे हैं। तो देन आई फाउंड आउट दैट द हिस्ट्री व्हिच इज बीइंग टॉट इन आवर कंट्री इज अ मैसिव फ्रॉड। तो दैट्स अ राइट वर्ड, फ्रॉड, इट्स अ फ्रॉड। जी, जी। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की, तब से मतलब आज से अगर आप 10-11 साल पहले की बात करेंगे, तो आई यूज्ड टू बी अ थॉरो सेक्युलर और सेक्युलर जिसे आप कह सकते हैं। आई यूज्ड टू बी लेफ्ट लीनिंग, आई यूज्ड टू बी एथीस्टिक, तो वो सारी बीमारियाँ मुझ में थी। तो देन इंटरेस्टिंग। आई जी, फिर ये जब मैं हिस्ट्री पे पढ़ रहा था, तब मैंने रिलिजन पे भी पढ़ना शुरू किया, एंड देन आई फाउंड आउट कि हम कितने ऑब्लीवियस हैं, इतनी मेजर थ्रेट है ह्यूमैनिटी के ऊपर। ये जो 2 यस। अब्राहमिक क्रीड्स हैं, दे आर अ थ्रेट टू एंटायर ह्यूमैनिटी। हम कभी-कभी अपने देश की बात करते हैं क्योंकि वो प्राइमरीली स्ट्राइक करता है। लेकिन ये वर्ल्ड ओवर एक इतनी बड़ी थ्रेट है, जिन्होंने इतनी सारी नॉलेज, इतने सारे नॉलेज सिस्टम्स वाइप आउट कर दिए पूरे प्लेनेट पर से। और जो इकोलॉजिकल डिजास्टर हम देख रहे हैं, वो इस मेंटालिटी के कारण है। जो हम सोशल ऑपरेशन, अब इन्होंने जो ऑपरेशन वाला एक नैरेटिव बना रखा है, पिटिंग वन कम्युनिटी अगेंस्ट द अदर, पिटिंग वन कास्ट अगेंस्ट द अदर, पिटिंग वन रिलीजन अगेंस्ट द अदर, वो सब इन्हीं का किया धरा है। 2000 साल हम्म। पहले जाएं तो क्राइम्स तो तब भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं थे। हम्म। these two creeds have institutionalized criminality, और उनको जो जामा पहनाया है वो रिलीजन का, इसलिए सीक्रेट लगने लग जाता है लोगों को। तो आई वाज शॉक्ड एट दिस, और तब फिर मुझे लगा कि दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी आवर प्रायोरिटी। तब मैंने इस पे काम करना शुरू किया था। वेल, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है पिछले 1 वर्ष में, मैं जब से आपको फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि जी, हम लोग, मैं बीइंग अ साइंटिस्ट, सर्जन, अस्पताल भी चलाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। इतिहास में मेरी बहुत रुचि है। आपके साथ मैंने महाराणा प्रताप पर एक शो भी किया है। किंतु बहुत सी बातें जो थियोलॉजी की थी, जो हमें नहीं पता थी, वो आपकी रिसर्च से और आपके ज्ञान से हमें पता चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महती कार्य कर रहे हैं आप मानवता के लिए, सनातन धर्म के लिए। और मैं एक बात अंडरलाइन करता चलूं कि नीरज के लिए भी मैं बहुत अथॉरिटी से ये बात बोल सकता हूं कि हमारा हमारा विरोध किसी व्यक्ति या किसी समाज से नहीं है। हमारा विरोध एक सोच से है, और उस सोच के खिलाफ सनातन सोच हमेशा खड़ी रही है। 1400 साल हमने समर्पण नहीं किया, हम अगले 1400 साल भी लड़ेंगे। कोई किसी प्रकार के किसी भी भूल में ना रहे कि हम समर्पण करने वाले हैं। 1400 साल नहीं लड़ेंगे, बड़ी जल्दी वाइप आउट करके हम इसको अपने आप को अब फैलाएंगे। कदम साहब समाप्त तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तो अपने संकल्प का की सीमा बता रहा हूं कि 1400 साल। मैं जब मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास पढ़ता हूं, मुझे मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि ऐसे लोग हो सकते थे। आज जब हर चीज अंगूठे की टिप पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और उस समय एक लेटर दूसरे राज्य से एक राज्य में आने में 14-14 दिन लग जाते थे, तब ये लड़े हैं। आई मीन, टू रियली से इट विद बेयर हैंड्स एंड रॉ गट्स। तो उस त्याग को, उस बलिदान को हम डिसोन नहीं कर सकते, उसको व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। हम जब मृत्यु का वर्ण करेंगे, तो हमारे पुरखों के चरणों में हमें तभी स्थान मिलेगा जब हम उनकी लेगेसी को, उनकी थाती को जी कर जाएंगे, ना कि उसे डिसोन करके। इस पे मेरे को बहुत सुंदर एक दोहा, मैं आज सुबह से सोच रहा था कि मैं आज की कॉन्वर्सेशन में कैसे डालूंगा, तो मुझे वो ओपनिंग मिल गई है। महाराणा जसवंत सिंह जी जोधपुर के थे, जो कि मजबूरी के कारण अकबर के इस जो औरंगजेब की तरफ से लड़ते थे अफगानिस्तान में, लेकिन वो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनका एक दोहा है जीवन के ऊपर, 10 द्वारे का पिंजरा, ये जो मनुष्य शरीर है, 2 3 4 5 6 7 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन,
पूरा भी नहीं है, 3/4 है। रहे अचंभो है जसा, जाए अचंभो कौन। ये अरेंजमेंट चलता है, ये आश्चर्य है। इस अरेंजमेंट के बिखरने का तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो हम उस लेगेसी के हेयर्स हैं और हमें उसको ओन करना है, उसको लिव अप करना है, उसको ऑगमेंट, उसको बढ़ाना है। गोवर्धन जी अगर रेडी हो तो हम उनको ले लें। गोवर्धन मेघवाल हमारे साथ। नमस्ते भाई, कैसे हो गोवर्धन जी? भारत माता की नीरज, जय। भारत माता की जय। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना आनंद है कि आपको नागरिकता मिल गई है गोवर्धन भाई। थैंक यू आप सर। 5 साल से हमारे निमित्त एकम का जयपुर का भार संभाल रहे हैं। सैकड़ों लोगों की नागरिकता गोवर्धन जी ने करवाई है। अपनी कहानी आप बताएं, और नीरज जी से मैं चाहूंगा कि नीरज जी आप इनको अगले 5-10 मिनट के लिए इंटरव्यू करें, ताकि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान में भुगतते थे, फिर निमित्त एकम ने इनके जीवन में क्या परिवर्तन लाया और अब ये कैसा अनुभव कर रहे हैं। जी। मैं बताऊं? जी नहीं, नीरज जी पूछेंगे आपसे, नीरज जी पूछेंगे। जी जी मुझे हटा दो तेज। गोवर्धन, 8-9 साल पहले मैं मिला था पाकिस्तान से जो विस्थापित हिंदू आए थे, जो दिल्ली में रह रहे थे उस समय। जी जी तो उनसे जब मेरी बात हुई थी कि ऐसा क्या फैक्टर था कि आपको सारा कुछ अपना वहां से उजाड़ कर यहाँ आना पड़ा और अब सड़क के किनारे बैठे हैं और फिर भी वो खुश हैं। फिर भी खुश है। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि मैं अपने बच्चों के लिए और स्पेशली अपनी बच्चियों के कारण आया हूँ सब कुछ छोड़कर। तो और वो मुझे जो उन्होंने इंसिडेंट्स बताए थे, वो ऐसे हैं कि मुझे कई रात तक नींद नहीं आती थी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किसी के लिए भी अपना घर-बार छोड़कर, सब कुछ उखाड़ कर इस तरह से आना सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप आए हैं तो ऐसा क्या ट्रिगर था, क्या चीज़ ऐसी थी जिसके कारण आपने ये निश्चय किया या निर्णय किया कि मैं अब पाकिस्तान छोड़ के आऊँगा? देखो सर, कोई ना कोई तकलीफ होती है तभी कोई आदमी अपना देश छोड़ता है। कोई आदमी अपना, जैसे कोई बस्ती है, कोई मकान, एक जगह से दूसरी जगह अपने देश में भी नहीं छोड़ के जाता, गली मोहल्ला पे भी नहीं छोड़ता। देश छोड़ना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। ठीक है, तो हमें वहां पर, देखो तकलीफें तो बहुत होती हैं हर प्रकार की वहां पर। ठीक है, मेन जो तकलीफ होती है वो होती है औलाद की। जब इंसान अपने बच्चों को बड़ा करता है कि हम हम बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, तब वहां पे हमारी औलाद सेफ नहीं है, हमारी बच्चियां सेफ नहीं है। तो फिर ये जो तकलीफें हैं ना, हमने देखी हैं। काफी काफी जो लड़के हैं लड़कियां हैं, वो उनको कन्वर्ट किया जाता है, हमारे सामने किया जाता है। ठीक है, ये तकलीफें देखकर हमें रात को नींद नहीं आती थी। हमें रात को खौफ लगा रहता था कि सुबह होगी, क्या हमारे बच्चे हमारे पास होंगे कि नहीं होंगे। तो ये चीजें बहुत मुझे तकलीफ देती थी। तो ये मैंने सोचकर कि यहाँ पर हमारा जो जीवन है बच्चों का और हिंदुओं का, वो सेफ नहीं है। हमें ये देश छोड़ना पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अपने हिंदू धर्म में जाएंगे, वहां पर इंडिया भारत माता में जाएंगे, अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे, वहां अपने बच्चों को अपने धर्म की तालीम दे पाएंगे। वहां पर ना तो कोई हिंदी तालीम है, ना कोई अपने वहां पे कोई हिंदी को ज्ञान दिया जाता है, ना कोई कोई गीता का प्रचार किया जाता है, ना कोई वहां पे ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो हमारे बच्चों को ज्ञान हो अपने धर्म के बारे में। तो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको मुस्लिम तालीम दी जाती, दीनी तालीम दी जाती है, तो उनके दिमाग में वही सब चीज चलती रहती है। तो थोड़ा सा वो देर नहीं लगती, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये मन में खौफ लगा रहता था। ये सोचकर अपने परिवार को मैं यहाँ पे लाया हूँ कि चलो भगवान करे हमारी हमारे जीवन जितना भी है, अपने बच्चे तो अपने धर्म में चले जाएंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम कल को ये तो नहीं देख पाएंगे हमारा कि हमारी कोई बच्ची कोई ले गया है, उनको उठा गया है, या उनका धर्म परिवर्तन हो गया है, या बच्चे हमारे हो गए। तो इसी वजह से ये मेरे
मन में जो खौफ था, इस यही सोचकर मैं अपने बच्चों को यहाँ पे ले आया हूँ। अब यहाँ पर आया हूँ तो बहुत सुखी हैं, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, कि अपने देश में ही आ गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। मैंने निमित्तकम संस्था का मैं को ऑर्डिनेटर हूँ, पूरा ऑफिस संभालता हूँ मैं यहाँ पर। काफी लोगों को मैंने नागरिकता दिलवाई है, पूरा नागरिकता का पूरा प्रोसेस मैं खुद संभालता हूँ। ऑनलाइन का, एलटी का, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं मैं उनकी सहायता करता हूँ, उनका आधार कार्ड बनाने में, और उनके कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस है, अकाउंट खुलवाने हैं, कोई भी समस्या है, डॉक्टर के पास जाना है, मेडिकल फ्री हमारी निमित्त संस्था दिलवाती है, एजुकेशन फ्री करवाती है, हर प्रकार की कि कोई गरीब आदमी है, कोई अपनी बच्चियों का शादी वगैरह नहीं कर सकते तो निमित्त संस्थाओं का सहयोग करती है। तो बहुत से मतलब हमारे संस्था के थ्रू गरीब लोगों को बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है यहाँ पर। जी। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए, तो आपने कहा कि यहाँ आ गए तो टेंशन नहीं है, लेकिन ये तो आप आज की बात करें जब आपको सिटीजनशिप मिल गई है, लेकिन आने के बाद और सिटीजनशिप मिलने के बीच में आपने कठिन समय तो वो भी झेला होगा। नहीं, मैं वो टेंशन कह रहा था जो वहां पर हमें टेंशन थी ना, वो टेंशन हमारी खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पर आने के हमें परेशानी आई थी, क्योंकि जब यहाँ पर मैं आया था तो मकान किराए पे यहाँ पे नहीं देते, यहाँ पे कब पूछा आए थे जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है। कब आए थे? मैं 2012 में आया था, जी 2012 में आया था, तो मकान किराए पे नहीं मिलते थे, क्योंकि जान पहचान के मकान किराए पे नहीं देते। यहाँ पहले पूछते हैं कि आपकी फैमिली कितनी है, फैमिली पाकिस्तानी बच्चे, पाकिस्तानी फैमिलियों के बच्चे ज्यादा होते हैं, तो किराए पे जरा मुश्किल देते हैं कि यहाँ पे 2 बच्चे हों, तो बहुत परेशानी होती है। आइडिया वगैरह नहीं थी, तो कहीं पे काम करने जाते थे, आईडी मांगते थे तो आइडिया नहीं होती, तो बहुत परेशानी हमने भोगी है। तो इधर दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, कभी सैडी जा रहे हैं, कभी फार्म भरने जा रहे हैं। मैं बताता हूँ इसमें, नीरज मैं जवाब देता हूँ, उत्तर देता हूँ इस प्रश्न का। आप देखें कि मुझे 8 साल पहले की घटना याद है। मेरे पास रात को 3 बजे एक थाने से फोन आता है जयपुर में कि हमने एक ऑटो वाले को पकड़ा है जिसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और ये आपका नाम ले रहा है कि आपको जानता है। आप उसको जानते हैं? अच्छा, 10,000 के आसपास पाकिस्तानी हिंदू जयपुर में रहते हैं। अब मैं हर एक को नाम से तो नहीं जानता, तो मैं और मेरा भाई छोटा जय जो है, हम लोग काम करते हैं। जय वैसे मेरी माँ का पैदा किया हुआ नहीं है, लेकिन वो मेरे भाई जैसा ही है। तो मैंने जय को फोन किया, मैंने कहा यार थाने से फोन आया। अब हम दोनों भागे, हम दोनों ने वहां जाकर देखा तो वो व्यक्ति जो वो हमें पता लग गया, हम क्योंकि इनका आपस में तो कनेक्शन होता ही है ना, वो बच्चा मेघवाल ही था। अब उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जब वो रात को ऑटो अपनी रोजी रोटी के लिए चला रहा था तो पुलिस ने जब उसको पकड़ा, उसके पास एक ही डॉक्यूमेंट था और वो था पाकिस्तान का पासपोर्ट। अपने भोलेपन में उसने दिखा दिया। अब पाकिस्तान का नागरिक यहाँ पर ऑटो चला रहा है तो वो तो धरा ही जाएगा। पुलिस थाने ने मुझे आंख से आंख मिला के, क्योंकि वो बाई चांस मेरा पेशेंट ही निकला, उसने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो आप? ये 2014 से पहले की बात है। मैंने कहा भाई मेरी व्यक्तिगत गारंटी पे छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, नहीं तो कल कोर्ट कचहरी के थ्रू मुक्त कराएंगे बाकी। लेकिन वो बेचारा पुलिस वाला, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट राजस्थान में इतना कंपैशनेट है इस विषय पर, हमें इतना स्मूथली काम करने को मिलता है, और उस पुलिस वाले ने उस बच्चे को छोड़ दिया। ऐसे अनगिनत किस्से हैं कभी रात को। तो ये गोवर्धन जी जब यहाँ पर भी आए थे तो इनकी दुविधा वन लाइन में अगर मैं सम अप करूं, पाकिस्तान में ये लोग काफिर हैं, यहाँ पर ये लोग पाकिस्तानी हैं। सही बात है। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। जी अच्छा, दूसरा मुझे आप ये बताइए कि आप देश छोड़ के आ गए, आपके पास एक शॉर्टकट था कि आप वहां पे इस्लाम भी तो अपना सकते थे, बहुतों ने अपनाया। हाँ, बहुत अच्छी बात हाँ गोवर्धन जी, अब दो इसका जवाब। हाँ, कि मैं अपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं 10वीं स्कूल में 10th क्लास में मैं पढ़ता था, तो एक मेरा वो जो क्लास फेलो था उसने बोला कि आप मुसलमान हो जाओ। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं मुसलमान होता हूँ, मेरी एक शर्त है कि मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, आप अपनी बहन की मतलब के शादी मेरे साथ करा दो, मैं मुसलमान हो जाता हूँ। तो उनको बहुत गुस्सा आया
तो मैंने पूछा कि जितना गुस्सा आपको आया है, जितना आपने क्वेश्चन किया है ना, इतना ही मेरे को तकलीफ हुई है कि आपने नाम कैसे लेकर कि आप मुसलमान हो जाओ। इतना मेरे को गुस्सा आया था उसे कि भगवान ने मेरे को हिंदू में पैदा किया है तो मैं मुसलमान कैसे हो जाऊं। ठीक है, तो भगवान मेरे को मुसलमान करना था तो मुसलमानों के घर में पैदा कर सकता था। जब भगवान ने मेरे को हिंदू धर्म में पैदा किया तो मैं हिंदू धर्म में रहूंगा, जीव मरूंगा, हिंदू धर्म में मरूंगा, मुसलमान क्यों हो जाऊं। मैंने सबको छोड़ दिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्या बात है गोवर्धन जी, नमन है आपको। धर्म सबसे ऊपर है, धर्म सबसे मैंने ऊपर है। इसका इंसान का धर्म नहीं है, वो इंसान नहीं है, मैं उसे इंसान नहीं मानता। मैं रिमेम्बर करता हूँ, इस बात को याद करूं कि आज से 6-7 साल पहले मैंने गोवर्धन जी से सवाल पूछा था। ये प्रश्न मैंने भी किया था नीरज, और मैं उस उत्तर को याद करके भावुक हो जाता हूं जब इन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी। मैंने पूछा, यार आपने कलमा क्यों नहीं पढ़ा, क्या आवश्यकता थी इतना दुख पाकर यहां आने की। इस आदमी का जवाब, जिनको शायद याद भी नहीं होगा, सर बाप दादाओं का धर्म ऐसे कैसे छोड़ दें। कैन यू बिलीव द कमिटमेंट। और यहां पर राइस बैग कन्वर्ट्स के 2 किलो चावल के लिए अपना धर्म बदल रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये जीते जागते भगवान है। ये पाकिस्तान से जो हिंदू आते हैं, मैं इनके चरण धोके इनका चरणामृत पीता हूं कि ये तो भगवान है मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी गोवर्धन जी, जब आप यहाँ आए हैं तो कितने फैमिली मेंबर्स थे? कितने मेंबर, कितने लोग आए थे? मेरे 5 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो हमें 7 आदमी हम आए थे। मैंने 3 बच्चों की शादी कर दी है। एक बच्ची परिष्कार कॉलेज में पढ़ रही है, जो निमित्तकम संस्था है, जो उनकी फीस वगैरह निमित्तकम संस्था दे रही है। तो क्योंकि इतना हम मतलब है कि नहीं होता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो निमित्तकम संस्था है जो वो पूरी फुल सपोर्ट कर रही है बच्चों को पढ़ाने में। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो निमित्तकम संस्था, उनका वो जो फीस वगैरह भाई साहब दे रहे हैं। भाई साहब को रिक्वेस्ट की, उन्हें कोई बात नहीं, आपके बच्चे नहीं हमारे बच्चे हैं। तो मुझे ये चीज देखकर मुझे मेरा आंसू आ जाते हैं कि कोई तो यहाँ पर है जो हमें अपना समझते हैं, अपना भाई मानते हैं। तो मेरे को कभी कभी बिल्कुल मैं वो नर्वस हो जाता हूँ ये बात सुनकर। भी वहां पर सबको छोड़ के आ गए, वहां पर सबको छोड़ के आ गए। यहाँ पर अपने भाई हैं, उन्होंने सपोर्ट की है, पूरी हेल्प की है, हमें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं आने दी। भी वहां पर आप लोगों को तकलीफ दी, यहाँ अपने भाई बैठे हैं आपको संभालने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंसान के लिए बहुत बड़ा हौसला हो जाता है ये कि कोई तो है हमें वहां पर संभालने वाला। तो ये बात बहुत मुझे ये लगती है भाई साहब। आप भाई मानता नहीं हूं मैं आपको, आप मेरे भाई हो। भाई है पिछले जन्म का कोई संबंध है हमारा। जी बिल्कुल नीरज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन नीरज, बिकॉज़ फिर अपन जो अपना जो दलित एक्टिविज्म वाले जो ब्रदर है मेरा राजेश, उससे बात करेंगे। जी, अब ये इनकी बातों से जो मुझे स्ट्राइक कर रही है कि जब ये लोग आते हैं यहाँ, सर्दियों में आते हैं, तो जब ठंडी सड़क पे बैठते होंगे तो इन्हें एक तरफ तो वो लोग हैं जो दरवाजा मुंह पे बंद करते होंगे कि तुम्हारे पास कागज नहीं है तो तुम्हें अपना कमरा किराए पे नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ फिर वो अमेंद्र जी जैसे या जय आहूजा जैसे लोग मिलते होंगे जो भाई मानना नहीं, भाई तो है ही है, लेकिन सिर्फ उसको एक्सेप्ट करके फिर आपको रास्ता दिखाना शुरू करते हैं। तो अब ये जब आप अभी अमेंद्र जी ने बताया कि आप वो ऑफिस चला रहे हैं, तो जो अब वहां से हिंदू आते हैं उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, उनके लिए क्या अरेंज करते हैं आप? पहली प्रायोरिटी उनको हम मकान किराए पे दिलवाते हैं। मकान किराए पे दिलवाकर उनका रहने बहने का, खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, और फिर उनको काम काज दिलवाने का वो करते हैं हम, ताकि काम काज करना बहुत जरूरी होता है। काम नहीं करेंगे तो फिर वो जी नहीं पाएंगे। वो उनके बच्चों, जो अगर बच्चे उनके पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं उनका, तो फिर उनका आगे जो प्रोसेस होता है ऑनलाइन वीजे का, जो शेडी उनके साथ जाते हैं हम, उनके फॉर्म वगैरह भर के उनका प्रोसेस वगैरह करते हैं, वो जरूरी होता है करना। तो ये चीज हम करते हैं। जी चलिए, ठीक है, तो वी विल नाउ शिफ्ट
टू द नेक्स्ट वन, बट मैं एक बात बताऊं इसमें नीरज, जो मेरी इनपुट है कि द बिगेस्ट रीजन हम पाकिस्तान से आने वाले 10,000 हिंदुओं को अब तक सपोर्ट कर पाए हैं वो है हमारी जाति प्रथा, हमारा कास्ट सिस्टम। और मैं कास्ट सिस्टम का बहुत बड़ा वोटरी हूं। कास्ट सिस्टम को हर मूल्य पर बचाना चाहिए। उसका पहला कारण तो ये है कि वामपंथी और सेल्फ प्रोक्लेम लिबरल्स जिस सिस्टम के पीछे हैं वो जरूर हिंदू धर्म के हित में होगा। मैं एक सिंपल मेरा लॉजिक है उसके लिए। दूसरा, मैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। कोई कास्ट ऊंची नीची नहीं है, कोई कास्ट ऊंची नीची नहीं है, सब कास्ट बराबर है। लेकिन कास्ट सिस्टम के कारण हम 1400 वर्ष इन मलिच्छों से संघर्ष करके जीवित बच पाए हैं। और आज के पाकिस्तानी हिंदू इशू में जब मेघवाल आता है तो हम उसको मेघवाल समाज को दे देते हैं, कोई भील आता है तो भील समाज को दे देते हैं, कोली आता है कोली, महेश्वरी आता है महेश्वरी, अग्रवाल आता है अग्रवाल, पुष्करना ब्राह्मण आता है ब्राह्मण। हर एक व्यक्ति अपने समाज में अधिक कंफर्टेबल फील करता है, उसकी भाषा, उसका रहन सहन, उसका खान पान। तो उस कास्ट के इकोसिस्टम का यूज करते हुए निमित्त एकम, वो एक बहुत स्पेसिफिक केस की बात तो अलग है, लार्जली हमारा काम नागरिकता तक, सिटीजनशिप तक ही सीमित है। हम लोग हर बंदे को रिहैबिलिटेट नहीं करते हैं, लेकिन 10,000 लोगों को रिहैबिलिटेशन कैसे किया? बिकॉज ऑफ द कास्ट इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम में सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो कास्ट की बात आ गई है तो अब हम गियर बदलते हैं इस गाड़ी का। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मेरे हृदय के बहुत निकट है वो है हमारे अपने भारतवर्ष में दलित कहे जाने वाले, मैं शब्द से ही घृणा करता हूं, मैं तो सहोदर कहता हूं, एक ही मां के पेट से जन्मे हुए लोग। ये दलित शब्द अगले 5 साल में मेरा मंतव्य है कि हमारी डिक्शनरी से ही हटा दिया जाए। किसी बड़े वामपंथी की बड़ी दुष्चाल, बड़ी कपटपूर्ण चाल थी कि उसने ये शब्द बनाया दलित। दलित कैसे हो सकता है कोई हिंदू? मुझे समझ में नहीं आता। कोई नीचे गिरा हुआ। हाँ। एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, पंडित जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके समय पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी जर्नलिस्ट्स को कि जब आपको इस तरह का कोई केस मिलता है तो आपने दलित शब्द को हाईलाइट करना है। रियली? डू यू हैव दैट इन द डॉक्यूमेंट? है आपके पास वो? अब मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है। ओह गुडनेस यार, क्या चालबाजियां करी इन्होंने। मैं तो सहोदर कहता हूं, वी कैन नॉट। तो हम लोग यहाँ पर 8-10 प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं इस वक्त। हमारा मुख्य काम वाल्मीकि और खटीक समाज के साथ में है। तो मैं मेहंदी क्लासेस और वो सब होते हैं। मैं राजेश चवरिया जो हमारे निमित्त एकम के जो दलित सहोदर समाज के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको लेना चाहूंगा। ये वीडियो आप एक बार पहले देख लें जो काम हम कर रहे हैं। निमित्त एकम के तत्वावधान में हम लोगों ने ये मशीन्स, लगभग 10 मशीन्स 25,000 रुपीज के एक्सपेंडिचर पर हम लोगों ने यहाँ लगाई हैं हमारे बच्चियों के लिए। और ये बच्चियां यहाँ पर काम सीखेंगी, अपना हुनर सीखेंगी, खुद दाल रोटी अपने घर का कमाएंगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी। जी महाराज। और ये बच्चियां अपना काम सीख करके स्वावलंबी, हमारे मोदी जी के स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर निमित्त एकम का ये छोटा सा एक योगदान है। और सबसे अधिक अगर मैं किसी का ऋणी हूं तो वो है राजेश, क्योंकि राजेश वो पिवट है, राजेश इज वो धुरी है, राजेश वो धुरी है जिसपे निमित्त एकम अपना काम पूरे वाल्मीकि समाज के साथ करता है। और कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ आदमी है। माँ जगदम्बा इसको खूब प्रगति दे, खूब इसको स्वास्थ्य दे, खूब लंबी आयु दे, मेरी यही प्रार्थना है। और सब दानदाताओं को धन्यवाद कि आप लोगों के धर्मांश के फलस्वरूप ही निमित्त एकम यहाँ तक इस यात्रा में आगे पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
ये वो ड्रेसेस थी जो इन बच्चियों ने ट्रेनिंग के बाद में बनाई थी। सो वी आर नाउ लुकिंग एट हाँ 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली ये जो आप काम कर रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है ही है, उसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आपने जो सत्यनिष्ठ और वो शब्द बोले, और मेरा आपको साधुवाद इसलिए कि आपने ईमानदार शब्द नहीं बोला। मेरे को उर्दू से घृणा है। जी। उर्दू हमारे पुरखों के हत्यारों की भाषा है, जी। और इसलिए हाँ राजेश जी नमस्ते। आपसे बात करने से पहले मैं एक और चीज जो महेंद्र जी से पहले जानना चाहता हूँ, आपने बीच में जब धर्मांश की बात की, जो आप ये 2 प्रकल्प चला रहे हैं, दोनों बहुत बड़े हैं जिसमें आपको एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज तीनों लगते हैं। तो बिल्कुल धर्मांश रखते वहाँ क्या व्यवस्था है और क्या वो पूरी पड़ती भी है? क्योंकि मुझे शक है कि नहीं पड़ती होगी, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। राजेश का माइक को म्यूट करना पड़ेगा, देयर इज नॉइज। राजेश माइक म्यूट करें। हाँ जी। वो क्या रहा है कि धर्मांश पर तो मैं राजेश से जब बात हो जाएगी तब अपन अलग से 10 मिनट चर्चा कर लेंगे, बट मैं मोटा मोटी बता देता हूं कि जब तक हिंदू समाज अपनी इनकम का एक पर्टिकुलर अमाउंट सनातन धर्म की रक्षा के लिए नहीं देगा, तब तक हिंदू समाज की लड़ाई लड़ना कठिन है। कोई स्वयंसेवकों से धर्म नहीं बचने वाला। 2014 में जब हमने काम शुरू किया था तब मैं और जय अपनी जेब से पैसा लगाते थे। 2014 के बाद मैंने धर्मांश मांगना शुरू किया। 2020 में मैंने इसका आंकड़ा जुटाया, कि इसका असेसमेंट किया कि यार देखे तो सही कितना पैसा हिंदुओं ने दिया और हमने क्या उसका परिणाम पाया। और वो चौंकाने वाले परिणाम थे, कितने सुखद चौंकाने वाले। 2020 में हमने जब 2019 की दिसंबर में जब हमने हिसाब लगाया, और वो मेरी वेबसाइट पर रखा हुआ है, औसतन 5 साल में हिंदुओं ने हमें 1 लाख रुपए महीने का धर्मांश दिया, जिसके कारण हम पाकिस्तानी हिंदू जिन लोगों को हम जयपुर और जोधपुर का जो ऑफिस चला रहे थे, उनकी सैलरी में मेनली हमारा पैसा चला जाता था। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ उन 2 ऑफिसेस का कि हम 10,000 हिंदुओं को पाकिस्तान से निकालने में सफल रहे। 2,000 हिंदुओं को हमने नागरिकता दिला दी। और बहुत गर्व के साथ ये बताता हूं कि राजेश 1 पैसा भी नहीं लेता है हमारे साथ काम करने का। सारा काम राजेश प्रो बोनो करता है। ये तो महापुरुष है, कोई पता नहीं कहां से भटकी हुई। तो इसका मुझे लग रहा है इसका अंतिम जन्म है, इसके बाद मोक्ष हो जाएगा। इसका मोक्ष हो जाने वाला है। तो अब हमारे पास धर्मांश और भी अच्छा आ रहा है। जैसे जैसे हमारा काम हम हिंदू समाज के सामने लेकर जा रहे हैं, पाकिस्तानी हिंदू विषय पर अब जो हमारा चैलेंज है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि 1 करोड़ हिंदुओं को निकालना है। और अब जो हिंदू वहां रह गए हैं 90% ऑफ दिस 1 करोड़, वो हैं जिनके पास पासपोर्ट के पैसे भी नहीं है। उनकी सिंध से लेकर रावलपिंडी जो इंडियन एम्बेसी है वहां तक उनकी यात्रा करने के पैसे भी नहीं है, जिसका हमने और गोवर्धन जी और हमारी टीम ने बैठ करके जिसका खर्चा निकाला, वो 5,000 रुपए प्रति हिंदू कॉस्ट आ रही है, 5,000 INR। तो आप सोचिए 5,000 इंटू 1 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ इनको वहां से निकालने के लिए चाहिए हमें। तो मैं बहुत गर्व से और बहुत सुखद अनुभूति के साथ कह सकता हूं कि बहुत से हमारे भारतीय और भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं ने ये आंकड़ा स्वीकार करते हुए कि मेरी तरफ से 10 हिंदुओं को निकालिए, मेरी तरफ से 5 को निकालिए, वो पैसा आना शुरू हो गया है। यद्यपि अभी पिछले 1 साल से बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस एंड द हॉस्टिलिटीज बिटवीन द 2 नेशंस हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं हिंदुओं को भी वहां से। लेकिन जब भी वो होगा तो वो चूंकि हिसाब हमारे पास में, हम वहां से हिंदुओं को निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरी प्ली और भी नीचे की आती है। कोई 5,000 रुपए महीने का नहीं दे सकता, हर आदमी की सक्षमता नहीं होती है, हर आदमी को अपने घर का बजट नहीं गड़बड़ाना है। मेरी प्ली जो मैं 2-3 बार इस प्रोग्राम में रिपीट करता रहूंगा अगले 20-25 मिनट तक, 100 रुपए प्रति हिंदू प्रति माह धर्मांश दें। जिस संस्था को आप अपने हृदय के पास पाते हैं, अग्निवीर को देना चाहें अग्निवीर को दें, इंडिक कलेक्टिव को देना चाहें इंडिक कलेक्टिव को दें, नीरज को देना चाहें नीरज को दें, जयपुर डायलॉग्स को देना चाहते हैं जयपुर डायलॉग्स को दें, निमित्त एकम को देना चाहें आप। मैंने इसीलिए पिछले 4 दिनों में जो हमने जो पिछले लास्ट वीकेंड एंड दिस वीकेंड हम 13 प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं हिंदुओं के सामने। अब इस बुके में से आप अपना प्रोजेक्ट चुन लीजिए कि मुझे इस प्रोजेक्ट को
दाना धर्म को करना है, हिंदू सेवा केंद्र केरल में उसको करना है, आज जो हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन का प्रोजेक्ट था उसको करना है। जिस प्रोजेक्ट को आपको फंडिंग देनी है दें। और क्या मांग रहे हैं हम आपसे? 100 रुपए एक महीने में। यार एक दिन कॉफी मत पीना, महीने की एक कॉफी मत पीना, उतना पैसा सनातन धर्म की रक्षा के लिए दे देना, क्योंकि वी नीड पेड पीपल। हमें पेड लोग चाहिए, जो लोग सनातन धर्म के लिए महीने की मासिक वेतन लेकर काम करें। हमें हिंदू डेडिकेटेड वॉर रूम्स चाहिए, वो बिना सैलरीड लोगों के नहीं होता है। मैं, नीरज, संजय दीक्षित सर, हमें तो कोई पैसा नहीं चाहिए, हम तो अपना पैसा कमा के संतुष्ट है। हम तो कर रहे हैं काम, लेकिन धरती पर जो बंदा ग्राउंड पर जाता है, हमें राजेश ज्यादा नहीं मिले, राजेश एक ही मिला ना इतने वर्षों में मुझे, जो बिना पैसे के काम कर रहा है। और मुझे पता है कि कितना त्यागी व्यक्ति है कि जब इसको रात को 12 बजे बुलाओ आ जाता है। इसका पेट्रोल भी लगता होगा, इसका समय भी लगता होगा, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसका भी परिवार है। इतने समर्पण वाले लोग तो मिलते नहीं है। बाकी हमें सैलरी रखनी पड़ेगी। ये मेरे धर्मांश की अवधारणा थी। क्षमा चाहता हूँ, उत्तर लंबा हो गया थोड़ा सा। जी राजेश जी, आप तो मुझे लगता है माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। आप ब्राह्मणवादियों और मनुवादियों के चक्कर में कहाँ फंस गए? आपको तो इनसे लड़ना चाहिए। बताइए इसका क्या उत्तर है आपके पास? आप तो इन्हीं के हो गए हैं, अपने भाइयों को छोड़ दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं और मैं इनका सम्मान करता हूँ और इनकी जो कार्यशैली है उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। और ये हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल कुछ साल पहले की बात है। एक हिंदू आदमी मर गया था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। तो सभी लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि बोलो इसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। तो मैंने कहा यार चंदा क्या करते हैं। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है राइस तो कर, इसको फटाफट जितना पैसा लगेगा अपन करेंगे। और उसका पूरा अंतिम संस्कार का पैसा डॉक्टर साहब ने दिया और हमने वहां जाकर उसका पूरा अंतिम संस्कार पूरी क्रिया विधि से किया था। तो बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत खुशी भी मिलती है कि, और लोगों में मैसेज गया कि यार बोला हाँ डॉक्टर साहब को फोन किया। और आज हमारी कॉलोनी में ऐसी बात हो गई कि कोई मतलब परेशानी भी आती है तो सबसे पहले ये कहते हैं डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। जी अच्छा, ये बताइए कि मैं तो स्वघोषित वाल्मीकि हो गया हूँ। मैं तो वाल्मीकि समाज जी, और वाल्मीकि जी ने जो रचना की है वो तो हम पढ़ते ही हैं, इसमें तो नहीं। मैं आई हैव कन्वर्टेड, मैं कन्वर्जन कर चुका हूँ, मैं वाल्मीकि हो चुका हूँ। अच्छा, राजेश जी, आपने जो बात की कि इसमें संतुष्टि मिलती है और खुशी मिलती है, उतना तो ठीक है, लेकिन पेट तो फिर भी लगा हुआ है। तो आपके ऊपर ये प्रेशर तो रहता होगा कि इतना समय और अगर आप इधर देते हैं तो फिर आप काम करते कैसे? क्योंकि घर का भी प्रेशर रहता है, वो रहता ही होगा। बिल्कुल, मेरे पास एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ मैं। और फिलहाल अभी मैंने LLB कंप्लीट करी है, RJS की तैयारी में कर रहा हूँ। तो जितना समय मिलता है समाज हित के लिए मैं डॉक्टर साहब के साथ मिलकर उसमें थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। और पैसा, मेरी मिसेज जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है तो मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो डॉक्टर साहब हैं ये आपको मनुवादियों का एजेंट बना के वाल्मीकि समाज में भेज रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ इस बात के कि मुझे एक माध्यम मिला है डॉक्टर साहब के द्वारा कि मैं अपने समाज के लोगों के लिए, दलित वर्ग लोगों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि यार मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, लेकिन डॉक्टर साहब एक माध्यम है जिनके माध्यम से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। जी, अच्छा, अब चलिए मैं थोड़ा मजाक में कह रहा था, लेकिन सीरियसली जो बात हमें समझनी है वो ये है कि ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो ये इस तरह का एक आर्टिफिशियल नैरेटिव खड़ा करती हैं कि इन्होंने तुम्हारा शोषण किया, तुम शोषक हो। क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, संसार भर में जो वामपंथी हैं उनका नैरेटिव ऐसे काम करता है। हमारे देश में तो मिशनरी भी साथ में जुड़े हैं और जिहाद लॉबी भी, तो 3 तरह की फोर्सेस ये एक तरह का एक मनगढ़ंत नैरेटिव क्रिएट करती हैं कि तुम एक अलग वर्ग हो, दूसरे वर्ग ने तुम्हारा शोषण किया है और अल्टीमेट तुमने कभी भी इनके साथ नहीं जुड़ना, ना ही इन पे विश्वास करना है। तो ये नैरेटिव आप जब काम करते हो तो ये आप ग्राउंड पे फेस कितना करते हो और कैसे करते हैं? नीरज सर, होता है, कई लोगों की मनोभावना इस तरह की बनी हुई है, लेकिन अगर देखा जाए धरातल पर, इस बात को देखा जाए तो हिंदू सभी हिंदू है। और जो भेदभाव है वो मुझे लगता नहीं कि
धर्म का भेदभाव हो सकता है, ऊंच नीच का, अमीरी गरीबी का जरूर भेदभाव हो सकता है कि कोई ऊपर बैठा हुआ है, कोई नीचे बैठा हुआ है, कोई ज्यादा पैसे वाला है, कोई बिल्कुल गरीब है। तो मुझे लगता है कि ये भेदभाव केवल उसी चीज का है कि गरीब है, इसको क्यों अपन इसके बराबर बैठेंगे, इसके बराबर करेंगे। दूसरा क्या है कि वाल्मीकि समाज के साथ अक्सर ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो काम जो है सफाई का करते हैं, तो उनके साथ नेचुरल ऐसा हो जाता है कि हाँ यार ये गंदा काम करता है, ये वो करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक हिंदू धर्म के नाते, क्योंकि हम शुरू से हिंदू हैं, हमने हिंदू धर्म में ही जन्म लिया है, हम हिंदू धर्म में ही मानते हैं, हमारा और कोई धर्म नहीं है। और एक छोटी सी बात, बंगी शब्द जो है वैसे वर्जित है बोलना, बोला नहीं जाता है, लेकिन जो बंगी शब्द है वो भंग, जब पुराने समय में जब मुगल का शासन हुआ करता था तो पंडितों को धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म को बचाने के लिए अपना जनेऊ भंग कर दिया, इसलिए बंगी शब्द की उत्पत्ति उस तरह से मानी जाती है। तो हम लोग भी मानो तो ब्राह्मण ही है एक तरीके से, जब भी तो अपना जनेऊ भंग नहीं कर पाए, और हम हिंदू में हैं और हिंदू है। इसमें राजेश जी, एक तो कि जन्म से तो सारे ही हिंदू होते हैं, क्योंकि अगर किसी को मुसलमान बनना है तो उसका टुकड़ा शरीर का एक काटना पड़ता है तब वो मुसलमान बनता है। तो लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, ये जो कि हम ऐसा काम करते हैं इसलिए शायद वो देखते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था कि डॉक्टर साहब सुलभ शौचालय जो है उनके जो आज की डेट में देश भर में एम्प्लॉइज हैं उनमें से 60 से 70% ब्राह्मण कास्ट के हैं। तो अब इस मतलब ये चीजें हमें इंडिकेट करती हैं कि ये जो नैरेटिव है वो नकली है, आर्टिफिशियल है, क्रिएट किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसमें फंसते हैं। तो राजेश जी, ये जो लोग इस तरह के नैरेटिव वाले आपको भी पॉइंट आउट करते होंगे कि इनके साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, तो वो कैसे हैंडल करते हैं? नीरज जी, अभी हमारी जयपुर में नगर निगम सफाई कर्मचारी भर्ती हुई थी, तो आपको बताऊं कि अभी वो आज से पहले जब भी हुई थी वो केवल वाल्मीकि समाज और बंगी समाज के लिए हुआ करती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि उसमें ब्राह्मण भी लगा है, राजपूत भी लगा है, बनिया भी लगा है, मीणा भी लगा है, मतलब पूरा आरक्षण पद्धति के माध्यम से उसका वो हुआ, और सभी लोग उसमें सफाई कार्य में आज सफाई कार्य कर रहे हैं। तो हम कहाँ कमजोर हो गए, हम तो उनके बराबर हो गए। ठीक बात है। तो अच्छा, इसमें आपको जो जब आप ये डॉक्टर साहब के साथ मिलके काम करते हैं तो कोई एक सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं? सर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डॉक्टर साहब सोल्व कर देते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं होती हमारे पास। ये ठीक है। प्रॉब्लम होती होगी भी, हम बताते हैं और बताने के बाद ये सोल्व हो जाती है, बोला ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने सिलाई केंद्र चालू किया हुआ है, तो अभी डॉक्टर साहब ने फोटोग्राफ दिखाया, वो एक सिलाई केंद्र का था, और रिसेंटली अभी हमने दूसरा भी सिलाई केंद्र खोल लिया है, और लड़कियां बड़ा खुश है कि आत्मनिर्भर बन रही है, खुद कपड़े बनाकर खुद पहनती है। और मेरी गुड़िया भी अभी लगभग 13 साल की है, और उसने जब खुद की ड्रेस खुद ही पहनी तो बड़ी खुशी हुई, बोला पापा मैंने अपने हाथ से बनाया, और शादी में उसने अपने मतलब मार्केट से ना खरीद कर खुद ने बनाकर खुद पहनकर शादी में गई, और 10 लोगों को उसने बताया कि ये ड्रेस मैंने खुद ने बनाई है। ब्यूटीफुल। थोड़े प्रकल्पों के बारे में और बताएं राजेश, अपन जो मेहंदी वाले ब्यूटिशियन के कोर्सेज, और एक को जो एक और था ना, क्या चलाते थे अपन, तीसरा काम जो किशन बाग में था, जो मेहंदी वाला, मेहंदी और कपड़ों वाला ब्यूटिशियन के कोर्स भी था ना एक जगह पर? नहीं, ब्यूटिशियन का नहीं था। जो अपने प्रकल्पों के बारे में थोड़ा सा बता दें 1-2 मिनट में फटाफट। तो नीरज सर, मैं बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के साथ कुछ सालों से हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मेहंदी का स्टार्ट किया था, और ये सोच के किया था कि वाल्मीकि समाज की लड़कियां हैं, आत्मनिर्भर बने और उनमें थोड़ा सा आत्मविश्वास जो है बढ़े, क्योंकि अधिकतर हमारे समाज में कमी देखी जाती है कि ज्यादातर लोग शराब अल्कोहल के आदी होते हैं, तो वो घर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और लड़कियां या औरतें अपने पति का इंतजार करती है कि वो आए और फिर घर का चूल्हा जले, फिर खाना बने, बच्चों को दे। तो लड़कियां अगर आत्मनिर्भर बन जाएगी तो उन चीजों का समस्याओं का निराकरण हो पाएगा कि यार ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, अपने बच्चों की परवरिश करने में, उनके जो जरूरतें हैं उनकी पूरी करने में रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ हमने मेहंदी का स्कोप चलाया कि हम मेहंदी की सिला करें। हमने 5 बैच निकाल दिए हैं, और एक बैच में 20 से 25 लड़कियां हुआ करती थी, और वो लड़कियां इतनी एक्सपर्ट हो गई मेहंदी में कि अगर वो किसी के हाथ पे मेहंदी बनाती है तो उसको 200 रुपए आराम से मिल जाते हैं। और उसके बाद हमने सिलाई का भी स्टार्ट किया है। सिलाई में अभी लगभग 4 महीने एक सेंटर को हो चुका है, और रिसेंटली अभी 15 दिन दूसरे सेंटर को हो गया है। लड़कियां आत्मनिर्भर बनती जा रही है, क्योंकि सिलाई में अभी मैंने लड़कियों से पूछा कि आप सिलाई क्यों सीखना चाहती है, तो उन्होंने कहा सर ब्लाउज की जो सिलाई है वो लगभग 250 से 300 रुपये हो गई है,
अब 250-300 रुपये अगर हम 2 ब्लाउज भी अगर महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 4 ब्लाउज भी अगर 1 महीने में सिल देते हैं तो हमारा घर का खर्चा आराम से हो जाएगा और हम चला लेंगे अपने घर का खर्चा। तो इसलिए हमने 2 सिलाई केंद्र भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हुए हैं। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक और मेरा जो इंटरेस्ट रहता है जानने में, ये जो जय भीम जय मीम है, जो एक्चुअली जो इस्लाम लॉबी से ही फंडेड है सारे का सारा, वो भी आपको क्या कभी परेशान करते हैं आपसे मिलने की, आपको बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है। नीरज जी बहुत करता है। मेरे समुदाय के कई लोग हैं जो जय भीम के नारे भी लगाते हैं और अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं। बहुत मुझे भी मतलब वो पूजा करने में, फोटो नहीं रखने में, ऐसे कई लोग हैं जो इस चीजों को फेस भी कर रहे हैं और वो मुझे भी प्रेशराइज करते हैं कि आप क्या है, ये ब्राह्मणवाद है, ये है। तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ, हम सब हिंदू हैं। तो वो लोग भी कई मेरी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो होता ना एक हट है उनमें, एक वो है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इनके साथ आ जाऊंगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो वो नहीं आ रहे, लेकिन आएंगे, उनको भी थोड़ा समय लगेगा, समझने में आएगा और वो भी आएंगे। जी, ये है जो सबसे आवश्यक काम मुझे लगता है, ये है आज की डेट में जो करने का है। ये जो नैरेटिव तोड़ते हैं डॉक्टर साहब, हैट्स ऑफ टू यू और राजेश जी, आपका बहुत बहुत बढ़िया काम है कि ये जो समाज तोड़ने वाली ताकतें हैं वो हमेशा से रही है, वैसे तो हर देश में रहती हैं, हमारे देश में थोड़ी कंसंट्रेशन उनकी बढ़ गई और ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये नैरेटिव तोड़ने का जो हम काम। यू जी, स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। देखो, हम जब तक बात ही नहीं करेंगे एक दूसरे समाज से। अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी 10 दिन पहले अपने फेसबुक पे, उसके बड़े इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स है। मैंने ब्राह्मणों और राजपूतों को अपील की थी कि राजेश एक बार अपना माइक म्यूट करो प्लीज, कि आप लोग जो कि शीर्ष पे हो हिंदू धर्म के, वैसे तो सभी हम बराबर हैं, लेकिन ब्राह्मण और जो राजपूतों का जो टैलेंट है वो किस तरह से वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण और राजपूत शायद विक्टिमहुड में चले गए। एंड दे द ओनली थिंग यू हियर फ्रॉम देम इन एनी काइंड ऑफ पोस्ट इज रिजर्वेशन, जो है वो हमारी समस्याओं का मूल है। यार, कुछ चंद हजार जॉब्स आपकी समस्या का मूल है। आज अगर रिजर्वेशन है और राजेश कहीं एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनता है, इससे बड़ा कोई हिंदू है? इससे बड़ा कोई बंदा है जो हिंदू धर्म की रक्षा कर सकेगा? और हिंदू धर्म रहेगा तो समाज में बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। हमारा जो 600 डिफरेंट डायलेक्ट्स, इतने रीजनल्स, इतनी भाषाओं, इतनी रीजनलिटीज, इतनी एथनिसिटीज वाले देश को क्या है जो बांध के रखे हुए है? सनातन धर्म। और अगर सनातन धर्म को ब्राह्मण और राजपूत ही प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जो अब तक करते आए हैं, और वो मैकाले पुत्रों की और मार्क्सिस्ट की और मुल्लाओं की चाल की वजह से अब इंट्रोवर्ट हो गए हैं कि यार ठीक है, अगर हमें कुछ नहीं मिला इसे तो हमें क्या मतलब है, हम भी छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। सनातन धर्म को ब्राह्मणों ने और राजपूतों ने जो अब तक प्रश्रय दिया है, अब तक जो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी है, उसमें मैं तो स्वयं एक ओबीसी हूं, तो मैं तो एक ओबीसी होने के नाते ही अपील कर रहा हूं अपने ब्राह्मण समाज से। मैं बहुत बहुत कातर मन से अपील कर रहा हूं, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है बंदे हाथों से कि कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। हम इस वक्त इस्लामिक और क्रिश्चियन ऑनस्लॉट झेल रहे हैं। आप इस वक्त ब्राह्मण सोसाइटी एंड दे आर स्टन्ड, दे आर राइट नाउ किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट वो थी कि उस पर कई रिस्पॉन्स आए कि आप तो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये दे रहे वो दे। अरे मैंने कहा भाई, जातिवाद को बढ़ावा देता हूं मैं क्योंकि मैं जाति नाम की इंस्टीट्यूशन में मेरी श्रद्धा है। अगर अकेले ब्राह्मण समाज को ले लें तो लगभग 8 करोड़ आबादी है ब्राह्मणों की, ऑलमोस्ट एज बिग एज फ्रांस। मतलब फ्रांस की ताकत तो अकेले ब्राह्मणों के पास में है। हम किससे डर रहे हैं? हम कौन सी विक्टिमहुड की बात कर रहे हैं? अगर हमारे पास राजेश जैसे सिपाही हैं, अगर आपके पास ओमेंद्र रत्नू जैसा कार्यकर्ता है जो कि जमीन पर आपको लीडरशिप देने को तैयार है, पर आप ले तो सही प्रभु। आप धर्माचार्य, आप मठाधीश, आप आश्रम में बैठे हुए प्रमुख, कम से कम माफिया का सत्य बोलना तो आरंभ करें। कम से कम ये तो बोले कि 3 हिंदू बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में उठ रही हैं और हम उसको नहीं होने देंगे। ये पीड़ा है एक एवरेज हिंदू की, जो मैं आज अब व्यक्त कर रहा हूं इस माध्यम से। और राजेश जैसे लोग
मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक ही विनती करता हूँ, लेट अस टॉक टू ईच अदर। हमने जब राजेश से बात करना आरंभ किया, मैंने कहा राजेश को कोई धर्म की शिक्षा थोड़ी दी है। मैं इनकी कॉलोनी में जाता हूं, मैं आपको बता नहीं सकता, जैसी भगवान राम की वंदना इनके समाज में होती है बॉस, बड़े से बड़े ब्राह्मण मंदिर में नहीं होती होगी। मैंने याद है राजेश अपन ने की थी जब वो SC/ST एक्ट वाला जब हुआ था, तो वो बच्चों ने किया था ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, वो मैंने रिकॉर्ड भी किया है। हाँ, और शिव जी के, हनुमान जी के मंदिर है वाल्मीकि समाज के, जिनके पुजारी भी वाल्मीकि है। ये एक व्यर्थ का नैरेटिव कि ब्राह्मणों ने ये कर रखा है, ब्राह्मणों ने वो कर रखा है। तो वी शुड स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, द कास्ट हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। बेसिक पता क्या है, ये जो बीच में नैरेटिव वाले लोग हैं वो तोड़ रहे हैं उसको कि इनकी डिस्कशन ना हो, तो वी हैव टू जस्ट negate their propaganda. Or no Neeraj, it is not like that. We are not reaching out to our poor and Dalit sahodaras. आप मेरे से बात कर रहे हो, आज राजेश से बात कर रहे हो, बट मेरी पहुंच क्या है, 2 कॉलोनीज तक है जयपुर की बात बता रहा हूँ। जयपुर में कम से कम 40 कॉलोनीज होंगी हमारे दलित समाज की, सहोदर समाज की। 38 में हमारी कोई प्रेजेंस ही नहीं है सर, मिशनरियों घुसा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ स्केलिंग की। हमें जो काम कर रहे हैं उसको हमें स्केल अप करना पड़ेगा। एक आइलैंड में हम साथ हो गए, उससे काम नहीं चलने वाला है। All the castes, the upper, the lower, the middle, the OBCs, the scheduled caste, blah blah blah, we have to start talking to each other because we have a common enemy. Sorry. मैं राजेश एक इनपुट चाहूंगा राजेश तुमसे कि तुम ये बताओ कि जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में क्या जानते हो? सर जोगिंद्रनाथ मंडल तो एक कानून मंत्री थे, वो पाकिस्तान गए थे उस समय, 1947 की बात है। तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा उनके साथ नहीं किया और बहुत दुखद परिणाम रहे उसके सर। तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दुखद परिणाम रहे उसके। ये बात अपने यहाँ पर बताते हो, जो जय भीम में भीम एकता की बातें करते हैं, तो उनको जरा बताइए कहानी वो। सर मैं अपनी पहचान की बात बताऊं तो हमारे साथ बड़ी समस्या होती है। हम किसी को कहते हैं वाल्मीकि, तो कोई पूछता है वाल्मीकि कौन होते हैं? वो तो मेरे साथ भी होता है। हमें बता रहे, वो पूछते हैं आप कौन? मैंने कहा राजेश वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन होता है? मैंने कहा हरिजन होते हैं। हरिजन कौन होते हैं? बोला बंगी होते हैं। तब जाकर उसको आइडेंटिफाई होता है कि हम बंगी हैं। वाल्मीकि से भी वो पहचान नहीं कर पाता है, वो हरिजन से भी समाज से पहचान नहीं कर पाता है। वो जाकर कहाँ पहचान करता है? जब बंगी शब्द आता है। और आपने पूछा कि फेस नहीं करते, कि हम कभी गाँव में जाते हैं तो गाँव में अक्सर क्या होता है कि हमारी कॉलोनियों को बिल्कुल आउट ऑफ साइड, बिल्कुल बाहर की तरफ रखा जाता है। गाँव में तो बहुत वो कहीं भी चले जाइए, कोई से भी गाँव में चले जाइए, किसी भी उस जगह चले जाइए, वो हमेशा लास्ट छोर पर रहते हैं। तो हमें इन चीजों को, जैसे हम पूछते हैं भाई किसके जाना है, बोलो वाल्मीकि के, तो वो नहीं बता पाते। जब उनको कहा जाता है कि साहब हरिजनों के मोहल्ले में जाना है, तो वो कहते हैं कि साहब उधर चले जाइए। तो हमारी आइडेंटिफाई हम भी खुद भी नहीं कर पा रहे। राजेश चावरिया बोलते हैं तो वो समझ नहीं पाते, राजेश वाल्मीकि बोलते हैं तो भी नहीं समझ पाते। फिर हरिजन शब्द और फिर बंगी शब्द यूज करना पड़ता है, तब जाकर हमारी पहचान होती है और फिर वो हमें बताते हैं कि साहब अच्छा बंगी है आप, तो ठीक है। मैं ये कह रहा था कितनी बड़ी गाड़ी से निकलकर हम बैठते हैं और किसी को कुएं पर पानी पीने की बात करते हैं, तो वो पहले जात पूछता है, कौन कैसे भाया? बोला साहब वाल्मीकि। कौन हो वाल्मीकि? बोला बंगी। अच्छा बंगी है क्या? कैसे? तो हमने कई बार इन चीजों को फेस भी किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज ये चीजें कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है गाँव में भी, और गाँव में भी समानता का अधिकार मिल रहा है। और जिस चाय की दुकान पर हमें चाय नहीं पीने देते थे, आज वहां हम चाय पीते हैं, बाल काटते हैं, नाई भी, और साइकिल वाला पंचर भी बनाता है, ऐसी बात नहीं है। तो समानता का अधिकार मिलता जा रहा है, लोगों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि हाँ हम इन लोगों के बराबर आने लगे हैं। और हमारे समाज में भी सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जो काम था एक सफाई का, मूलभूत काम सफाई का था, अब उससे हटकर भी लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैं स्कूल चला रहा हूँ, कई लोग दूसरे काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करें। पढ़ाई का स्केल भी बढ़ा है लोगों का। पहले 10वीं बहुत कम लोग मिलते थे, आज BCom, BSc, MA बहुत सारे लोग बनते जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लड़कियों की पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा उछाला है।
और अच्छा काम हो रहा है। और अभी जो मैंने अभी बताया था आपको कि सफाई कर्मचारी भर्ती में, तो अब तो इक्वल हो गए हम, मतलब कोई कह नहीं सकता ये काम सब कर रहे हैं। ब्राह्मण भी कर रहा है, मीणा भी कर रहा है, जाट भी कर रहा है, तो बंगी भी कर रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम बराबर हो गए। और हम तो कहते हैं कि अगर जब बराबर ही हो गए तो हम लड़की व्यवहार भी एक दूसरे से करना स्टार्ट कर देंगे, तो समानता एग्जैक्टली, अधिकार बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आई थिंक अगर इसको बॉइल डाउन करें तो ये आर्थिक रह गया है विभाजन, ये सामाजिक नहीं रहा हिंदू समाज। वो तो हाँ आर्थिक ही आर्थिक रहेगा, विभाजन हो गया है वो और तो रहेगा ही, केवल कोई इक्वालिटी आने वाली भी नहीं है। हम्म, हाँ सर, जो आर्थिक रूप से समानता है वो तो कभी किसी समाज में ना आती है ना आएगी और ना वो आना वांछित है। वो तो हाँ, ये ठीक, लेफ्टिस्ट नॉनसेंस है कि ऐसा हो सकता है, वो कभी भी नहीं होने वाला। कभी नहीं होगा सर, सही बात है। तो और कुछ पूछना नीरज आपको राजेश से, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता से, जो मुझे समाज तो की दृष्टि से मुझे तो बड़ा सुन के अच्छा लग रहा है कि ये जो समरसता जिसकी लोग बात करते हैं वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे इस तरह से हो रही है, और यही हम जी रहे हैं। नीड ऑफ द आवर है ये। और इसके लिए सिर्फ एक जयपुर में नहीं, और जयपुर की भी सिर्फ 2 कॉलोनियों में नहीं, ये तो पूरे देश भर में होना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं वो ओरिजिनल हैं, क्रिएटेड हैं, कैसे वो जैसे भी हों, उन फॉल्ट लाइंस को हमें बंद करना है। और जो लोग उन्हें काटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट अगर लड़ना है तो इस तरह की संस्था हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, हर बस्ती में होनी चाहिए जो ये काम कर सके। तो राजेश हम जी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे को और राजेश नहीं मिल रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम ये है। मैं मुझे राजेश को लगता कह भी है चुका हूँ ये बात। जी, नहीं उतने उमेंद्र जी भी हैं क्या साथ में? नहीं, उमेंद्र तो बहुत है, राजेश जमीन पे काम करने वाले नहीं मिलते नीरज, जो जो whom we can trust, who can deliver on ground। सबसे बड़ी समस्या है कि बातें करते हैं, पैसे की बात आती है उसको लेके भाग जाते हैं, तो राजेश नहीं मिलते, राजेश नहीं मिलते, सहज फोन उठाते ही जय श्री राम बोलता है। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि हर कोई अपने अलग-अलग स्तर पे होता है। तो जब आप राजेश की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि ये तो मोक्ष में जाने वाला है, तो ये हर कोई होता नहीं है ना, क्योंकि वो तो कृष्ण जी अपने आप ही बताते हैं कि हज़ारों में से कोई एक की सोचता है। सोचने वालों में से बिल्कुल ठीक हज़ार होता है। तो ये तो रेयर चलता है, कमोडिटी है। रेयर तो ब्रीड है। ये तो फिर भी आपकी हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए, हमें अपनी खोज जारी रखनी चाहिए, हमें राजेश चाहिए। हम भारत, कम से कम राजस्थान के हर शहर में एक निमित्तकम कॉलोनी चले, जहां हम खटीक, वाल्मीकि, रैगर, हमारे वंचित समाज की बच्चियां, और मेरी दृष्टि में कोई भी हिंदू बच्चा जो जो धनी नहीं है, जिसके पास धन का अभाव है। अब मैं धर्मांश पर विस्तार से बात करूंगा। राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और माँ भगवती आपकी रक्षा करे। अब हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद राजेश। So to conclude now, for the next 10 minutes, we'll talk about Dharmansh, Neeraj, उमेंद्र जी, and इसमें जो चीज मुझे स्ट्राइक की है, जो 2 डिस्कशंस हमने की हैं, कि राजस्थान का तो एक थोड़ा सा यूनिक केस इसलिए बनता है कि वहां पर हिंदू जो है वो आ रहे हैं। तो ठीक बात। ये जो ये आप काम कर रहे हैं, इसको मुझे यहाँ लोग मिले थे जिन्होंने कहा था कि अगर कोई ये काम कर रहा है कि जो पाकिस्तानी हिंदू है उन्हें निकालना चाहता है, तो हम उनका फाइनेंशियल असिस्टेंस करेंगे। तो अभी मुझे आपकी बातों से ध्यान आ गया, वो तो मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा। हाँ, लेकिन हाँ। मुझे लगता है इसमें आपको सबसे बड़ी फाइट तो ये रिसोर्सेज की ही रहती होगी। अभी रिसोर्सेस की नहीं है नीरज, अभी तो ये है कि जो वीजा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो वहां सर अभी निकल ही नहीं सकते हैं। अभी तो जैसे सीएए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैडल, एंड द टॉप लीडरशिप इज बिजी। अगर सीएए इम्प्लीमेंट हो जाए तो सीधे सीधे लगभग 40,000 हिंदू सरदार हमारे नागरिकता पा जाएंगे। उसका मतलब ये है कि वे 40,000 और 40,000 को स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का हिंदू और सरदार जब यहां आता है तो ऐसे ही नहीं आ जाता है मुंह उठा के, उसकी स्पॉन्सरशिप होती है जो एक इंडियन सिटीजन को देनी पड़ती है। वो इंडियन सिटीजन हम इन्हीं लोगों में से बनाते हैं। जैसे गोवर्धन अब सिटीजन हो गए, अब ये अपनी मासी को बुला सकते हैं, अपनी बुआ को बुला सकते हैं, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एक एक पाकिस्तानी हिंदू वीजा को वेटिंग करता है, तब जाकर के वो वीजा मिलते हैं। 2,000 वीजा पर मंथ मिलते हैं।
तो अभी हमारी फाइट रिसोर्सेज की इतनी नहीं है। जिस दिन बॉर्डर्स खुलेंगे, जिस दिन पाकिस्तान से हिंदुओं का आना आरंभ होगा और वो फोन आने हमारे पास शुरू होंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं भारत आना चाहता हूं, तब मैं फुल ब्लास्ट पैसे की डिमांड हिंदू समाज से करूंगा। बहुत से हिंदू हैं, मेरे पास कनाडा से एक सज्जन का फोन आया था कि मैं आपको $500,000 देना चाहता हूं। मैंने कहा साहब $500,000 का मैं करूंगा क्या, अभी तो आप उसको रखो। जिस दिन मेरे पास ये एवेन्यू होगी कि मैं इतने हिंदुओं को निकाल सकूं वहां से, उस दिन मैं आपके पैसे की करूंगा। एंड दूसरा जो इशू पाकिस्तानी हिंदू के संदर्भ में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें 1 करोड़ हिंदुओं को हम भारत में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको निवेदन किया 2000 वीजास पर मंथ का क्या मतलब हुआ, साल के 24,000। और अगर सारे वीजा पाकिस्तानी हिंदुओं को निकालने के लिए काम में लिए जाए, जो कि नहीं होता है, तो भी अगर शेयर नंबर्स में, और 10 साल में कितने निकले, 2.5 लाख। 10 साल में तो ये हिंदू मारे जाएंगे। तो हमें इनको कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अंदर सिटीजनशिप, इसलिए ये इशू ह्यूमन राइट वायलेशन का, इसका ढंग से डॉक्यूमेंटेशन जो हमने किया है, उसको लेके हमें जाके बैठ जाना है धरने पर यूनाइटेड नेशन के सामने। हमें जाके बैठ जाना है कैनेडियन, अमेरिकन एम्बेसीज के सामने कि अगर आप सीरिया से रेफ्यूजीज को ले सकते हैं तो पाकिस्तानी हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा है भैया। अगर आप यूरोप में रेफ्यूजीज को ले सकते हो तो पाकिस्तानी हिंदुओं को भी ले लो। जब तक अपन उस स्केल पे इस काम को नहीं करेंगे, ये हिंदू मारे जाएंगे। तो ये तो मैंने बताया आपको पाकिस्तानी हिंदू। फंडिंग की बात वहां लागू होती है हमारे दलित समाज के साथ में, हमारे गरीब हिंदू के साथ में। डेफिनेटली हमें बहुत सारे फंड्स चाहिए। जितने फंड्स आते जाएंगे उतने फंड्स में शहर टू शहर हम लोग एक्सपेंड होते चले जाएंगे। कि अब आपके पास एक मॉडल है, उसको रेप्लिकेट करना है बस। Exactly. तो वो स्केलिंग करने के लिए आपको वर्किंग हैंड्स भी चाहिए और मैचिंग रिसोर्सेज भी चाहिए, क्योंकि ये जो फाइट है ये प्राइमरीली तो है मिशनरीज के साथ, जो इस मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते हैं। दलित, हाँ, हमारे सहोदर समाज के साथ जो फाइट है मिशनरीज की है। हाँ, और जो जय भीम जय नीम है वो आइडियोलॉजिकल लेवल पे लड़ते हैं। उसके लिए आपको राजेश जी जैसे लोग चाहिए होंगे जो उनको उनकी भाषा में ही उनके बीच में बैठ के समझा सकते। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कई बार जो संघ के साथ मेरी बातचीत होती है कि आप दलित लीडरशिप को ग्रूम क्यों नहीं कर रहे हैं। आप सहोदर समाज में से लीडर्स बनाइए ना। अगर वो चंद्रशेखर रावण बना सकते हैं तो आप राजेश चवरिया बनाइए। बट द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। हमें बात तो करना शुरू करना पड़ेगा ना। ये जी, और एक जो बड़ा फैक्टर जो मुझे बातों से समझ में आ रहा है कि हम चर्च के साथ कंपीट करने की सोच रहे हैं, तो हम उस संस्था की बात कर रहे हैं जिसके पास 1600 साल का एक्सपीरियंस है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सपीरियंस है, जिनकी दूरदृष्टि कोई 10-20 साल की नहीं होती, 100 साल की, 500 साल की होती है। कि जब वो मिलेनियम हमारा है, वो मिलेनिया की बात करते हैं। तो हम भी इस तरह से तो ये लूजिंग प्रोपोजिशन है कि अगर एक उमेंद्र रत्नू थोड़ा सा टाइम अपना निकालते हैं तो डेडिकेटेड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। वॉर रूम्स चाहिए, डेडिकेटेड वॉर रूम्स। जी, एक चीज और जो मैं देखता हूँ इसमें, क्योंकि मैं थोड़ी मेरी नेचर थी वो एक्टिविज्म वाली शुरू से, तो वो फील गुड फैक्टर तो देता है कि आप गए 1 घंटा 2 घंटा प्लैकार्ड उठाए, कोई इशू बनाया, वो तो ठीक है। लेकिन जिनके साथ जिनके साथ हम compete कर रहे हैं, उनके पास डेडिकेटेड लोग हैं जो इसी काम के लिए बैठे हैं, जो स्लोगन कॉइन करने बैठे हैं, जो टर्मिनोलॉजी डिवाइस करते हैं, जो पेनिट्रेट करते हैं एकेडमिया में, जो पेनिट्रेट करते हैं समाज में। वो डेडिकेटेड है, उनको अपने खाने पीने की चिंता नहीं, वो लग्जरी में रहते हैं। और हम अगर ये सोचें कि इस तरह की डेडिकेटेड फोर्स को compete करने वाला पार्ट टाइमर होगा, तो वो नहीं जीत पाएगा। इसके लिए हमें वैसा ही पैरेलल सिस्टम चाहिए, उससे ज्यादा सक्षम अगर ना हो, कम से कम उसके बराबर हो, क्योंकि जो हमारे पास जो प्लस पॉइंट है वो सिर्फ यह है कि हम सच की बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली, हम पीस लाने वाले हैं। तो लेकिन इसके लिए मैं जो रिसोर्सेज अगर मैं इमेजिन करने की भी कोशिश कर रहा था, तो माइंड बॉगलिंग फिगर है। माइंड बॉगलिंग है, लेकिन मैं आपकी बात को थोड़ा सा संशोधन करूं, हमें उस लेवल का अपैरेटस, उस लेवल की फंडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ को चलाने के लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए होते हैं।
सत्य को चलाने के लिए करोड़ों ही पर्याप्त होते हैं, लेकिन करोड़ तो चाहिए ना। मैं जैसा निवेदन कर रहा था, 1 लाख रुपए महीने के धर्मांश तो हमें आवश्यकता थी। ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने और जय ने अपनी जेब से दे दिया, सैलरीज चुका दी, क्योंकि मैं सक्षम हूं। मुझे इस समाज ने इतना धन दिया है, मेरा अपना अस्पताल है, मेरी पत्नी धन कमाती है, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसके पास, हमारे पास पैतृक संपत्ति भी थी, इसलिए मैं तो उसको कर पाया। लेकिन हर आम साधारण हिंदू नहीं कर सकता इस काम को, तो हम डिमांड क्या कर रहे हैं? मैं तो इतना सिंपल गणित का एक मॉडल आपके सामने रख रहा हूं। संसार में 100 करोड़ हिंदू हैं, ज्यादा 99 करोड़ को क्रिकेट देखने दो, इनको बॉलीवुड देखने दो, इनको थीम पार्टियां करने दो, इनको फॉरेन की महंगी महंगी वेकेशंस करने दो, इनको अपनी बच्चों की शादियों में करोड़ों उड़ाने दो, इनको दारू पार्टियां करने दो, इनको रिश्वतें खाने दो, खिलाने दो, वो सब करने दो इनको, जैसा जीवन इनका चल रहा है। मैं 1% हिंदू समाज से अपील करता हूं, 1 करोड़ हिंदूज globally give 100 rupees a month. That gives us 100 crore rupees fund every month. मैं चैलेंज करता हूं 5 साल में सनातन धर्म विश्व गुरु बन जाएगा। 100 करोड़ रुपए महीने की फंडिंग की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। अच्छा, वी डोंट नीड मोर मनी देन दैट, क्योंकि उसी 100 करोड़ से हम वो वॉर रूम्स क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि सत्य हमारे साथ है। अगर हम ये बात बोले कि 5,000 प्रति पाकिस्तानी की कॉस्ट है और हमें 1 करोड़ पाकिस्तानी निकालने हैं वहां से हिंदू, तो 5,000 करोड़ है। 5,000 करोड़ बोलना आसान होता है, उस मनी को मैनेज करने का apparatus का है हमारे पास में। लेकिन यदि हम उस चीज को देखें कि हमें रेफ्यूजीज बनाना है, हमें यूनाइटेड नेशंस में इस बात को उठाना है, हमें ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर ये बात उठानी है, तो अपने आप पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हिंदुओं को शरण मिलना शुरू हो जाएगी। तो फिर ये फिगर 1 करोड़ नहीं रहेगा, फिर आपका 20 लाख हो जाएगा या 30 लाख हो जाएगा। और उसमें से भी फिर जब एम्पावरमेंट होता है किसी भी कम्युनिटी का, तो इवन इन पाकिस्तान हिंदूज जो है सेफ हो जाते हैं। लेकिन कोई बात करना तो आरंभ करे सर। बात तो आपने आरंभ कर दिया, बस उसको एम्पलीफाई करने की जरूरत है। लेकिन मैं कितने मठाधीशों के पास में गया हूं, मैं कितने धर्माचार्यों, मेरा बहुत क्रोध, मेरा बहुत आक्रोश, मेरा बहुत जबकि मैं कट्टर कट्टर घेरवाधारी हिंदू हूं, लेकिन मैं बहुत निराश हूं कि किसी साधु संत ने अपना प्लेटफॉर्म नहीं दिया इन गरीबों को। आज गोवर्धन मेघवाल जाकर अपनी बात अगर किसी हिंदू समाज से करना चाहे, तो क्या किसी साधु को उसको अपना प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए? सामने 500,000 लोग बैठ करके छोटो सो मेरो मदन गोपाल करके बौंडे नाच नाचते हो, उससे अच्छा एक पीड़ित हिंदू की कष्ट को कम से कम हिंदू समाज को बताओ तो सही। मेरा मानना है कि वो जो 1% हिंदू समाज जो 100 रुपए प्रति माह देगा, वो इन्हीं लोगों में से तो निकलेगा। मेरी जो कैपिटल है, आपकी जो कैपिटल है, हम उसको बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। लेकिन कहाँ है हमारा हिंदू मैं इसीलिए फिर जाति व्यवस्था पर फॉल बैक करता हूं कि चलो मेघवाल समाज को अपील करते हैं। आज गोवर्धन मेघवाल है, करोड़ों की आबादी है मेघवालों की, 100 रुपए दे। मैं क्या करूं फिर? मैं जाति प्राइड को अपील करता हूं। अगर धर्माचार्य नहीं सुन रहे हैं, मठाधीश चुपचाप बैठे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स बन गए हैं और पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं, तो फिर मैं समाज को अपील करता हूं। ये दुविधा है। लेकिन इसमें अच्छा, जो आप अभी बात कर रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर हमारे पास इस तरह से 100 करोड़ पर मंथ आता है, उसमें सवाल ये उठ जाता है कि लोग बोलते हैं कि हम किसी पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, किसे दें? तो क्या करेंगे? मतलब 100 रुपए का हिसाब ले लेंगे, वेबसाइट पर डाला हुआ है सब कुछ। क्या चाहते हैं? मतलब जय को, आपको मैं बता नहीं सकता जय को किस तरह की थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं। आई एम श्योर आपको भी आती होंगी। वो तो हम सब झेलते ही होंगे। नहीं, तो मतलब वो छोटी बात नहीं है, हमारे परिवारों में क्लेश होता है उससे। जी। क्या चाहते हैं? मतलब क्या करें हम जिससे सिद्ध होगा कि ये पैसा सही जगह जा रहा है? नहीं, मैं तो उनको मैं हिंदू समाज से पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं हिंदू समाज से पूछ रहा हूँ कि 100 रुपए का क्या हिसाब चाहते हो भैया? आके पाकिस्तानी हिंदुओं के कैंप देख लो, जोधपुर, जयपुर, कर्णावती और दिल्ली में कैंप्स चल रहे, आप जाके उनसे मिल लीजिए। भाई पिछले 1 साल में 10,000 परिवारों को खाना खिलाया है निमित्तकम ने, जब लॉकडाउन था। मिल लीजिए जाके उन लोगों से जो जिंदा है। मरने तो नहीं दिया ना पाकिस्तानी हिंदुओं को हमने, दिया समाज के पैसे से ही है। तो 100 करोड़ की फंडिंग का हिसाब पूरा वेबसाइट पर होगा। जो सज्जन जानना चाहते हैं कि पैसा कहां से आया और कहां जा रहा है, वो सब हिसाब दिया जाएगा। निमित्तकम का 1-1 रुपए का हिसाब मेरी वेबसाइट पे पड़ा है। नहीं, दूसरा फैक्टर ये भी आता है नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये एक लेम लॉजिक है, ये एक लेम एक्सक्यूज है कि पैसा कहां जा रहा है।
अरे नहीं, मुझे 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 उस- मुझे आई फील ऑफेंडेड बाय दिस क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ। मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई आप एक काम करो, आप पहले ठोक बजा लो कि हम किसको देना चाहते हैं। वो ज़रूरी है ना कि आपने उपेंद्र रत्नू को देना है, नीरज अत्री को देना है, या पनन कश्मीर को हाँ, देना है, या डायलॉग्स को देना है, तुम्हारी इच्छा है। वो अलग लेकिन बात है। एक बार तुमने ठोक बजा लिया, उसके बाद तुम्हारा ये धर्म बन गया कि तुमने वो धर्मांश देना ही देना है। उसके हाँ। बाद आप पीछे नहीं हटोगे। हम कोई और आके फोर्स खुद चेक करो, आपका अधिकार है, आप वीडियोस मंगाओ, आप अपनी ग्राउंड लेवल पे अपने रिश्तेदार को बोलो। कोई आप मान लीजिए कोई बंदा मुझे लखनऊ से पैसे भेज रहा है, वो अपने जयपुर में बैठे किसी रिश्तेदार को बोले कि यार जरा ऑफिस जाकर देख कर आया यार यहाँ पे लोग क्या काम कर रहे हैं। हुँ। आपको, आपका अधिकार है, अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपको उसको वीडियोस, उसकी नहीं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भेजा जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। उनका अधिकार नहीं है, ये उनका दायित्व है देना। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया, तब आप धर्मांश नियमित रूप से देंगे। ये आपकी कमिटमेंट, आपका कर्तव्य होना चाहिए। अगर ये सोच के करेंगे, उसको राइट मान के करेंगे, वो फिर वही है कि मैंने 5,000 दिए थे, बताओ जी कहाँ गए? वो हिसाब फिर तो हम इसी में, आप लोग इसी में उलझ जाएँगे। मुझे वो ठीक नहीं लगता। मैं तो, आपकी बात सही है तत्वगत, लेकिन मैं तो डेडिकेटेड एक टीम लगा रखी है भैया। जैसे ही पैसे देने वाला हिसाब मांगे उसको पैसे भेज दो, हिसाब बच्चे का वीडियो बना के भेज दो, भेज देते हैं। हमारे पास अब भगवान की कृपा से इतनी टीम हो गई है हमारे पास। लेकिन इसका जो मैं एक जो 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 प्रेमाइस है पूरा धर्मांश का, वो मैं इस पर आधारित करना चाहता हूँ कि जो इब्राहिमिक मत है, आप एक काम करें, जो भी सुन रहे हैं इस टेलीकास्ट को, किसी नर्सिंग स्टाफ, जो क्रिश्चियन नर्सिंग स्टाफ है, उससे जाके पूछ लें। आपका कोई भी मुसलमान मित्र है, उससे पूछ लें कि वो महीने की कितनी ज़कात देता है, कि वो महीने का कितना टाइथ, जो क्रिश्चियन व्यक्ति है, जो जो नर्स है, वो महीने का कितना, आप दंग रह जाएंगे। क्रिश्चियंस अपनी इनकम का 10% लोकल चर्च को देते हैं। वो नहीं पूछते कि आप इस पैसे का क्या कर रहे हैं। वो पेस्टर बीच में कुछ पैसे खाता भी होगा, हरे को दूध का दूल्हा तो नहीं है, बहुत खाते हैं बहुत खाते हैं। हाँ। तो हिंदू समाज ने ठेका ले रखा है कि हिंदू कार्यकर्ताओं से पूछे कि भाई हमारा पैसा कहाँ गया। पूछिए, मैं उसको मना नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम इस संस्कृति को तो जन्म दीजिए कि 100 रुपए प्रति माह हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए देना ही देना है। लोग कई बार तो मैं भूल जाते हैं यार, आप 1,000 रुपए का नोट कहीं रख के तो नहीं भूलते, हम्म, आप भूलते वही हो जो भूलना चाहते हो। इसका मतलब आपको ये थ्रेट अभी तक समझ ही नहीं आई है कि सनातन धर्म, आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं इनमें से कितने लोग ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके होंगे। इसलिए फिर हिंदू समाज से हाथ जोड़कर मेरा विनती है, 100 रुपए प्रति माह एक संस्था को दें, और इस मैसेज को अपने रिश्तेदारों, अपने वर्क पे कलीग्स जो हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों के साथ पार्टी में डिस्कस करें, और धीरे धीरे समाज वापस खड़ा हो जाएगा। ये जागरूकता है, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है कि जब मैंने ये शुरू करने का सोचा था, तो मुझे सबने कहा कि क्यों कर रहे हो? ये मुर्दा समाज है, ऐसी कौम है, ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारे पीठ में छुरा मारेगी। तो मैंने कहा भी मैं ये सोच के नहीं कर रहा कि मैं किसी पे एहसान कर रहा हूँ। ये हमारा दायित्व बनता है, ये मेरा धर्म है, तो वो मुझे करना है। फिर मैंने नोटिस किया कि लोग उठते हैं और लोग सहयोग भी करते हैं, कर रहे हैं। तो ये 100%। गलत इमेज बनी हुई है लोगों के, करते नहीं, उनसे उन तक पहुंचने वाला चाहिए, बस ये है। हाँ, बिल्कुल पहुंचने वाला चाहिए। और फेलियर हमारी लीडरशिप का है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर है, हमारी धार्मिक लीडरशिप का फेलियर है, हमारी सोशल लीडरशिप का। मैं कहता हूं कास्ट, आज सारे के सारे महेश्वरियों के चुनाव होते हैं, यहाँ पर करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं। पाकिस्तान से 100 महेश्वरी परिवार आए पिछले 5 साल में, एक परिवार की मदद नहीं करी इन लोगों ने। अरे महेश्वरी तो महेश्वरी की मदद कर दो यार। महेश्वरी तो सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है भारत की। तो ठीक है, आई थिंक एक शुरुआत करी है अपन ने, आरंभ किया है नीरज, तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्लीज प्लीज। स्वामी विवेकानंद की कोट याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि आपको दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए हिंदू का दर्द जब तक महसूस नहीं होगा ना, तब तक आप हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। और बिल्कुल ठीक। वो हमारे समाज में वो वैल्यू सिस्टम, वो पीड़ा, वो जो एम्पैथी, वो क्रिएट करने की आवश्यकता होगी, और लोग उठेंगे। मेरा मानना है कि सिर्फ कम्युनिकेट हम ठीक से, हमारी लीडरशिप नहीं कर पाई, तो करेंगे तो ये काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू नीरज, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक 2 घंटे से ऊपर अधिक हो गया हमें बात करते हुए। आपका समय लिया, आपने इतने प्रेम से सारे हमारे प्रोजेक्ट्स को आपने इंटरोगेट किया, उसको दुनिया के सामने, हिंदू समाज के सामने प्रकट किया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपने समय दिया हमें।
I think Richa is joining us back to wind up the things. We have been dominating the thing. Richa, we sorry to keep you waiting. आप म्यूट हैं आप ऋचा जी. Richa. I was just saying, Neeraj ji, namaste. I've followed you for so many years. I've, watched your videos. So really, really excited to listen to you. Both of you, a passionate discussion, very, very important discussion. Or, I think I'm going to keep to English. I love the quote that you just said, about Vivekanand ji saying that, jab tak ek Hindu dusre Hindu ka dard nahi samajhta, we can never progress. And it just brings me back to the first day, Omi ji, when, Hindu Seva Kendram, jo Kerala ke Shashi Vishwanath ji hain, उन्होंने भी यही बात कही थी कि हमें चाहे वो कैरिबियन का हिंदू हो, चाहे फिजी का हिंदू हो, चाहे कहीं भी हो, हिंदू को एक हिंदू का दर्द समझना वही हिंदुत्व है. उन्होंने ये कहा था. तो मैंने पहली बार I felt okay, हिंदुत्व is a term that has been maligned so badly around the world. And आजकल यूएस में जो एक पॉलिटिकल माहौल है, उसमें जो आरएसएस को लेके, मोदी जी को लेके बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, और उसका जवाब एज इंडियन अमेरिकन हमें देना पड़ता है. कई बार अपने पॉलिटिशियंस को समझाना पड़ता है कि क्या चल रहा है, एक्चुअल में व्हाट CAA रियली इज, व्हाट कास्ट रियली इज. ये सब बातें आज इंडिया में तो शायद चल ही रही होंगी, लेकिन यहाँ पे हमें उसकी भरपाई करनी पड़ती है. यूएस में वी हैव टू कीप एक्सप्लेनिंग. So I think one of the most important things that we've discussed today is the Dharmansh issue. Omi ji, you've always said it, and it's just hopefully helped to reach out to everybody. And VSI ka jo platform hai, I think this is going to really in the bring next all couple of of that months, together, the cohesion of the Hindu community. Yeah. In the next couple of months, we are aligning with like-minded people, and we will formally launch a Dharmansh Foundation, by which we will be funding all the projects that we have already covered up in VSI. Because if we do not fund these brilliant people working so hard on ground, there's no point talking about them. ये तो सिर्फ नैरेटिव अभी हमने बनाया है कि इन लोगों की बात को हम हिंदू समाज के पास लेके गए हैं. आने वाले 6 महीनों में हम इसको फॉलो अप करेंगे, एक प्रोजेक्ट को हम फंडिंग दिलवाएंगे, और माँ भवानी इसमें हमारी रक्षा करे, इसमें हमारा मार्गदर्शन करे. और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार. ऋचा, आपने इतना समय दिया, पिछले 2 महीने से आप मेरे साथ लगी हुई है इसके अंदर. मैंने देखा पूरी टीम हमारी, तेज, शशि भाई साहब, मैं सबका बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ. सबने अपना मूल्यवान समय देकर के इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुंचाया है. आगे भी श्री हरि हमारा मार्गदर्शन करते रहें. सनातन धर्म विजयी हो. हर हर महादेव जी. हर हर महादेव जी. एक अंतिम बात, ये साका जौहर स्मरण हम लोग 25 फरवरी को हर प्रतिवर्ष जो है हमारा एक इवेंट बनाने वाले हैं. ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी हिंदू समाज की. पूरे विश्व में कोई हमें ऐसा उपक्रम नहीं मिलेगा जहां पर इस्लामी आक्रांताओं से बचने के लिए हमारे पूर्वज जो स्त्रियां थीं वो जल के मर गईं, लेकिन उन्होंने अपना शील भंग नहीं होने दिया और अपना मृत शरीर भी राक्षसों के मलेच्छों के हाथ में नहीं पड़ने दिया. और जो हमारे योद्धा थे मेवाड़ के, वे वो युद्ध करके मारे गए. अपने से 4 गुनी बड़ी सेना को भी उन्होंने मार डाला. तो साका जौहर चित्तौड़ का 25 फरवरी 1568 का जो हुआ था, अकबर जो नीच और जो दुर्दांत आतंकवादी था, उस व्यक्ति ने एक दिन में 40,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था. उन पवित्र आत्माओं की स्मृति में हम प्रतिवर्ष साका जौहर स्मरण का कार्यक्रम करेंगे, जिसका आरंभ इस वर्ष से हम लोग कर रहे हैं. जो जहां बैठा है वहीं से हमें अपनी प्रार्थनाएं, अपना आशीर्वाद दे. इस संकल्प के साथ अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं. अगले वर्ष VSI की यात्रा में फिर आपके दर्शन होंगे. जय श्री राम. हर हर महादेव. हर हर महादेव. So that was wonderful, very passionate discussion from 2 very passionate Sanatanis. And, it was so wonderful to meet Rajesh and
I've heard so much about Rajesh Chavaria from Omiji for a long time, and it was just great to meet him online and listen to him, as well as Gordhanji. I've heard a lot about him. So I thank you all for joining in today. I think we had 4 days, and I was just looking at the themes, across so many conversations that we had, and narrative, I think, has been a big one that we discussed today in the morning as well. Narrative and documentation, is so important. We all can contribute in whichever way, whatever your work stream, whatever your talent, as a Hindu, we can all contribute to our dharma and make sure that, we contribute either through dana, either through upholding our knowledge from our ancient times and propagating it, talking about our history and, writing about our history like Omiji is doing. He's taken up the Mewar Rajputana and, looked at the glorious past that we have. Or we could even look at, issues like, the most important is Shramdan, volunteering. And I would say that the one thing that Omiji's message today was, and Neeraj and Omiji discussed in so much detail, was Dharmansh. Volunteering or donating to specific projects, we are very, very good as Hindus to understand the pain and compassion that is part of our dharma. But, Dharmansh is a clinical, methodical donation where you take a part of your money, earnings, and give it away. Just give it away without thinking as to where it's going. I think trust is a big issue, as Omiji was discussing with Neeraj, is a big issue among Hindus. Where did my money go? How was it used? And, we never ask that about our tax money. We never ask that about our many of the other donations that we do to other organizations. But, we do not trust our own Hindus. This was inculcated in us by the British, this was part of that. I have read about this many times, that, this is part of that whole changing the society business that they were into, where, they had, broken the cohesiveness of our culture and our civilization, and the divide et impera, or divide and rule policies that they used. So we need to start trusting each other. We need to start being compassionate and being for each other, and in a clinical way start giving dharmansh to these organizations. And I look forward to having a VSI platform or a Dharmansh Foundation where we can all sort of just quickly click, and just make sure we have that process much more easier, much easily facilitated, and where we can send out newsletters to people who donate, things like that. So then that 1 crore donors, is what Omiji always talks about. 1 crore people donating a small amount, crowdfunding our projects. And I think that's possible. That is our dream. And with that dream, I leave it with you, and I hope to meet you next year on the same platform. Jai Shri Ram and Namaste.